Okay, hello everyone. Now let us discuss our subject engineering hydrology. Engineering hydrology. Right? And the content is chapter 1, basic concepts, in which first part is precipitation and its measurement. Second part, evaporation and its measurement. Third part, infiltration and its measurement. Fourth part, transpiration and evapotranspiration. Right? So these are the basic concepts, correct? And now in chapter 2, we will discuss stream flow measurements. And in chapter 3, we will discuss hydrograph analysis. And in chapter 4, that is floods and flood routing, right? So basically these are the 4 chapters. अगर आप अकेले करके देखोगे then 7-8 चैप्टर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8, right? Runoff I will consider in I will discuss in the hydrograph analysis, because the runoff is the part of hydrograph. And now you can refer a textbook of K. Subramanya, right? But apart from this, the most important book is IES back year, objective plus conventional, and the second is GATE back year question paper, and third, if you want, then you can refer theory booklet of MEDG, right? So apart from this, if you will be successful to cover these entire domains, then you can refer IAS and IFS back year question paper, right? So now these are the reference book. Okay, so analysis is like this. The weightage of this subject for various exam for which you are preparing is like this: GATE and IES. This is objective and this is conventional, right? So 8 to 10 questions, and here 20 to 25 marks conventional, right? And this is 4 marks. Generally 4 to 5 marks are asking, so this is 4 marks, right? So now one by one we will discuss the entire topic. So first we have to understand, the overview of this subject, in which direction we have to proceed. So overview should be very clear. So just see here, what is the main aim of this subject. So just I will discuss in 5 minutes, right? So you have to be very careful for these things, and this is equally important for your interview also. So now just see, suppose this is the catchment, right? This is the catchment, and you can understand this is the catchment of anywhere, like catchment of Delhi, okay, Allahabad.
right? And just I'm using the word here catchment, right? Catchment. So catchment, basin and watershed, also same term, right? So just we will discuss how can we proceed through a catchment, और इस कैचमेंट को हम बनाते कैसे हैं, तो आप कैचमेंट कैसे ट्रेस करते हैं, जस्ट वी विल डिस्कस इन चैप्टर 2, दैट इज इन अ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, राइट? सो जस्ट सी हियर, सपोज दिस इज अ मेन स्ट्रीम, राइट? दिस इज अ मेन स्ट्रीम and this is main stream like river Ganga, correct? And now this is inflow from another catchment like Uttarakhand, and this is outflow to another catchment of Bihar as per the geographical conditions, correct? So now in this way, in this case, just we have to observe the precipitation. Precipitation means what? The term precipitation denotes all forms of water that reaches on the earth from atmosphere. तो एटमोस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट्स की जो भी फॉर्म आ रही है, दैट इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन, राइट? आई विल डिस्कस दिस प्रेसिपिटेशन इन अ वेरी डिटेल वे व्हेन वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द गोइंग इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, जस्ट आई विल डिस्कस, ओके? सो जस्ट यहाँ पर आप ऐसा समझे, ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट रीचेज ऑन द अर्थ फ्रॉम एटमोस्फेयर, दैट इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन. तो इस प्रेसिपिटेशन को मेजरमेंट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेन गेज. तो यहां पर जो रेनफॉल हमें मेजरमेंट करनी है, उनके लिए हमें रेन गेज लगानी है, राइट? ये हमने रेन गेज लगा दिए यहां पर, करेक्ट? इस तरीके से 5 रेन गेज हमने लगा दिए, राइट? अब मान लीजिए कि इस रेन गेज को 5 ही रेन गेज की जरूरत है, so that is called optimum number of rain gauge. And now suppose कि इस कैचमेंट को 10 रेन गेज की जरूरत है, that is called optimum number of rain gauge. So our first fundamental part is to calculate optimum number of rain gauge. This is first fundamental part. और ये बहुत ही बेसिक्स न्यूमेरिकल है, जो कि मेंस में भी आते हैं और प्री में भी आते हैं इन पे क्वेश्चंस, right? There are so many questions which has been asked in your ESE pre-exam, right? As per the this concept, that is optimum number of rain gauge. चलिए क्वेश्चन की बात तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं. So just we have to proceed through the concepts. कि first we have to check what is the optimum number of rain gauge. अब क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए कि रेनफॉल की वैल्यू यहाँ आ गई P1 सेंटीमीटर, यहाँ पर P2 सेंटीमीटर आ गई, दिस इज P3 सेंटीमीटर, this is P4 सेंटीमीटर and this is P5 सेंटीमीटर. ये आपकी रेनफॉल की वैल्यू आ गई, राइट? प्रेसिपिटेशन को हम रेनफॉल से भी इंडिकेट करते हैं. सो these are the various values of rainfall at different locations. तो अगर मैं आपसे पूछूं, if I am going to ask what is the rainfall values for the catchment of Allahabad, then what will be your answer? P1 centimeter, P2 centimeter, P3 centimeter, P4 centimeter or P5 centimeter? No, all are wrong here. So our answer should be in terms of mean value of rainfall. So just we will represent mean value of rainfall, P bar for this catchment is like this, right? जैसे सपोज करो कि आप हमारी क्लास में 200 स्टूडेंट बैठे पड़े हो, तो इन 200 स्टूडेंट्स, सपोज मैंने एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करी सॉरी, और मैंने कहा इसमें कि स्कोर कितने आ रहे हैं, तो 200 बच्चों का स्कोर इंडिविजुअली बताना बहुत ही डिफिकल्ट होगा मेरे लिए. सो जस्ट आई विल रिप्रेजेंट द एंटायर स्कोर इन टर्म्स ऑफ एवरेज, एंड दैट इज कॉल्ड मीन ऑफ दिस मीन ऑफ योर स्कोर्स. तो हियर just we have to represent this catchment in terms of mean value of rainfall. So this is one of the most fundamental part of this topic कि मीन कितनी है. जैसे इंडिया की एवरेज रेनफॉल जो है वो 120 सेंटीमीटर है, विच इज ग्रेटर देन वर्ल्ड एवरेज रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर पर ईयर. तो एक साल में इंडिया में 120 सेंटीमीटर बारिश होती है. तो यहाँ पर इस मीन रेनफॉल वैल्यूज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. अब क्या है, ये जो डिवाइस हमने यहाँ पर लगाए हैं,
इनका नाम है रेन गेज, राइट, दिस इज कॉल्ड रेन गेज। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, सपोज 20th of June, 20th of June को 15 जून को इंडिया में मानसून की अराइवल हो जाती है। सो 20th of June को just we went on this catchment and we are interested to find the mean value of rainfall, but when we went on the catchment then just we saw this rain gauge is inoperative, means ये रेन गेज जो है आपका वो वर्क ही नहीं कर रहा है, मीन्स देयर आर एनी टेक्निकल फॉल्ट या फिर हाई विंड एक्शन या फिर एनी अदर रीजंस के कारण ये रेन गेज हमारी टूट चुकी है, वर्क नहीं कर रही है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं मिसिंग वैल्यू ऑफ रेनफॉल, दिस वैल्यू इज मिसिंग। सो आवर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू ऑफ रेनफॉल, मिसिंग वैल्यू ऑफ रेनफॉल। तो अब हमें मिसिंग वैल्यू ऑफ रेनफॉल फाइंड आउट करनी होगी। सो नाउ यहां पर जो मैंने सीक्वेंस लिखा है आपका, वो सीक्वेंस मैंने उल्टा लिखा है। अब देखिए कि अगर ये वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो क्या आप मीन निकाल सकते हो इस कैचमेंट का? मींस आई एम ट्राइंग टू से if this value is not available here, then can you calculate the mean value of this catchment? No, right? So this is very fundamental parts here. What? Before finding the mean value of rainfall, it is necessary to first check the continuity and consistency of the catchment. So continuity का मतलब क्या होगा यहाँ पर? Means continuous catchment का मतलब क्या होगा? अगर सारे के सारे रेन गेज वर्क कर रहे हैं and all rain gauges are able to produce the values of rainfall in a particular year, in a particular day, in a particular month, right? Then we will say this catchment is continuous. But if any one value is not available here, then we will say the catchment is discontinuous here. So before finding the mean, we have to check the data for continuity and consistency. सो कंटिन्यूटी की बात तो मैंने आपको यहां पर समझा दी कि सारी वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात क्या है? अगर मान लो ये वाला रेन गेज एयरपोर्ट के पास लगा पड़ा है, एयरपोर्ट वाले एरिया के पास लगा पड़ा है और वहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, राइट? तो इस रेन गेज को यहां से उठाकर हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया न्यू लोकेशन पे। सो यू कैन नॉट से कि जितनी बारिश यहां पर ये रीड करता था उतनी ही बारिश यहां पर ये रीड करेगा। आई मीन टू से कि यहां पर जो वैल्यू होगी P5 की, ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू पहले से आती थी हमारी, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज द क्लाउड फॉर्मेशन हियर इज डिफरेंट एंड द क्लाउड फॉर्मेशन हियर इज डिफरेंट, राइट? सो अब जो कैचमेंट है हमारी वो क्या हो गई? इनकंसिस्टेंट हो गई। तो इस इनकंसिस्टेंसी को आपको रिमूव करना है, दैट इज इनकंसिस्टेंसी। अब ये इनकंसिस्टेंसी जो है फुल्ली कन्वेंशनल टॉपिक है हमारा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ग्राफ पे सॉल्व होगा, बट मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। दिस इनकंसिस्टेंसी विल रिमूव बाय डबल मास कर्व टेक्निक, राइट? तो यहां पर देखो जो मैंने सीक्वेंस लिखा है 2 3 4, तो एक्चुअल सीक्वेंस ये होगा। अब यहां पर हमारा दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, मतलब इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद ही आप यहां तक प्रोसीड कर सकते हो, राइट? सो नाउ ये तो इनकी बात होगी। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लो कि मीन रेनफॉल वैल्यू आ गई इलाहाबाद की 400 सेंटीमीटर। अब अगर ये 400 सेंटीमीटर और एवरेज मीन आती है 200 सेंटीमीटर मान लो, तो 200 का डबल हो गया 400। एक्सेस वाटर आएगा, तो एक्सेस वाटर जाएगा कहां? एक्सेस वाटर हमारा ये जो रन ऑफ वाटर है इस रिवर में ऑन टाइम नहीं पहुंचेगा। ऐसे जैसे देखो ये इस तरीके से पहुंच रहा है वाटर और इस तरीके से ये यहां से बाहर निकल रहा है, राइट? लेकिन जब वाटर एक्सेस होगा तो ये वाटर क्या होगा? यहां से स्प्रेड करना शुरू हो जाएगा और ये कैचमेंट में पूरा का पूरा क्या होगा? हमारा फ्लड्स आ जाएगा, राइट? जिसको हम कहते हैं बाढ़। तो हम लोग कहां पर हैं अभी? राइट नाउ हम लोग कहां पर हैं? We all people are living in a watershed, right? And river is the part of watershed. So we are here. This is our residential area, right? This is our residential area. Now we will feel flood. तो actually क्या है? Being a civil engineer, our ultimate aim is to protect the catchment from a flood. So इस flood से protection जो होती है हम before flood भी करते हैं, during the flood भी करते हैं, after flood भी करते हैं। So before the flood जो हम protection करते हैं catchment को, like हम anti erosion work कर देते हैं, और
फ्लड फोरकास्टिंग कर देते हैं, मींस अनाउंसमेंट कर देते हैं कैचमेंट में कि नाउ दिस कैचमेंट इज नॉट सेफ right now because last year the magnitude of rainfall was excess and the river is going to be in a overflow conditions, so this catchment is not safe, so please vacate this area and just go just shift in any another area. So this procedure is called generally flood forecasting. And now दूसरा जो है हमारा एंटी इरोजन वर्क हम कर देते हैं. जब मैं फ्लड्स पे आऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा एंटी इरोजन कैसे किया जाता है, राइट. तीसरा सॉरी, जब फ्लड्स आ गई है तो हम फ्लड्स फाइटिंग करते हैं, राइट. और जब फ्लड का रिट्राइवल हो जाता है तो फिर हम कैचमेंट को सही करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर फ्लड जो वर्क करते हैं, राइट. तो अब देखिए यहां पर आप कि फ्लड्स, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि ये पकड़ना कि रिवर आखिर किस कंडीशन में है. क्या ये रिवर फ्लड लाइक, देखिए अगर फ्लड आ गई मींस हम लोग अनसक्सेसफुल हो गए. अगर हमने इस कैचमेंट को बचा लिया, बंदों को हमने रेस्क्यू करके हमने बचा लिया, यहाँ पर कोई मतलब कुछ ये नहीं हो रही है, इंजरी नहीं हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिससे कि बहुत सारी लाइफ लॉसेस हो रही है और समथिंग, तो वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इंजीनियर राइट नाउ. सो यहाँ पर अब देखिए आप कि जो फ्लड्स के कंडीशंस हैं, फ्लड्स होती क्या है. इफ फ्लड इज अनयूजुअली a high stage in a river when water overflows on its banks. इसको हम बैंक कहते हैं. वाटर जब हम यहाँ पे ओवरफ्लो करेगा तो हम कहेंगे फ्लड है. जैसे आप मेरे हैंड को ऐसे देखिए, दिस इज द चैनल, ये चैनल है. तो पानी अगर इसमें जा रही है देन इट्स वेरी ओके, बट पानी अगर इसके ऊपर स्प्रेड कर रही है तो आप तो यहीं पर हो ना, तो आप फील करोगे दिस इज द फ्लडेड कंडीशंस. तो ऐसा नहीं है, जैसे कई लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है फ्लड्स के बारे में कि जब पानी आएगी हमारे कैचमेंट में 3-4 फीट आ जाएगी, हमारे घर को बहा के ले जाएगी, देन वी आर सेइंग दिस इज द फ्लड. नहीं, जब एज पर द डेफिनेशंस ऑफ टेक्निकल इंजीनियर्स क्या है हमारा, और एज पर द IRC कोड हमारा डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, ए फ्लड इज अनयूजुअली हाई स्टेज इन रिवर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज ऑन इट्स बैंक. तो हाई स्टेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टेज, आई एम सेइंग स्टेज, STAGE. स्टेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, a stage of a river is water surface elevation measured above the datum and datum may be mean sea level or any assumed local level. तो जो datum होती है हमारी, जो हम assume करते हैं mean sea level, आपने देखा होगा सिटी की हाइट लिखी होती है 320 मीटर above the mean sea level, 500 मीटर above the mean sea level and so on. So that is the datum. And आप कोई local level को datum assume कर सकते हैं, but how can you assume the local level? Just I will discuss this term in a stream flow measurement, right? And now just see here कि जब ये floods आ गए तो देखो यहां पर दूसरा जो है एक प्रोसीजर है फ्लड राउटिंग, दैट इज कॉल्ड बार्ड मार्ग. चलिए मैं थोड़ा सा फ्लड राउटिंग पे आने से पहले थोड़ा और फ्लड्स पे ही बैक आता हूं. जैसे मान लो कि यहां पर हमने एक ब्रिज बनानी है, ठीक है, ये ब्रिज हमने बनानी है यहां पर इस तरीके से, ये हमने यहां पर ब्रिज बना दी, ठीक है, इस तरीके से. अब क्या है एग्जैक्टली यहां पर कि जब हमने ब्रिज बनाई है तो जब वाटर इसमें एक्सेस आ रहा है तो पानी जो है ना इस ब्रिज को ओवरटॉप कर जा रही है, मींस यू आर द फेलियर इंजीनियर हियर, राइट. तो एग्जैक्टली क्या है, इस ब्रिज को किस डिस्चार्ज के लिए तुम डिजाइन करोगे. तो मान लो कि इस रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है, हमने लास्ट 50 इयर्स का डेटा देखा और इस रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज हमने पाया. ओके नाउ सो जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर ये ब्रिज है मान लीजिए और हमने देखा है कि इस रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड की आती है, बट ये जो डेटा है इनकी फ्रीक्वेंसी है 50 इयर्स की. दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो 100 मीटर क्यूब पर सेकंड की डिस्चार्ज है वो 50 साल में एक बार पाई जाती है, मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 इयर्स की. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज रिकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड. तो इस रिटर्न पीरियड की मैं पूरी की पूरी एनालिसिस आपको करवाऊंगा जब मैं फ्लड्स फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा आपको, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, उसमें मैं इनको डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल फॉर्म में, इसका डेफिनेशन बताऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको दिखाऊंगा. तो अगर मान लीजिए कि 100 मीटर क्यूब पर सेकंड की डिस्चार्ज है और आपने इस ब्रिज का हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन लाइफ 50 साल का रखा है, लेकिन डिस्चार्ज जो आपने डिजाइन किया है वो 90 मीटर क्यूब पर सेकंड पे किया है, तो ये ब्रिज सेफ नहीं है. अभी वाटर इसको ओवरटॉप कर सकता है और जब वाटर ओवरटॉप करेगा या फिर हाई प्रेशर जनरेट होगा, ब्रिज आपकी वॉश आउट भी हो सकती है यहाँ से, राइट. तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, हमें इस रिटर्न पीरियड पे जो डिस्चार्ज आता है उससे थोड़े ज्यादा डिस्चार्ज पे हम डिजाइन करेंगे. एक सेफ्टी फैक्टर रखेंगे, एक सेफ्टी मार्जिन रखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी फैक्टर एंड सेफ्टी मार्जिन? जस्ट आई विल डिस्कस इन द टॉपिक, राइट, इन द टॉपिक ऑफ फ्लड्स.
तो यहाँ पर दूसरा जो नेक्स्ट है फ्लड राउटिंग, दैट इज बाढ़ मार्ग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा अल्टीमेट एम होता है कि इनफ्लो की रफ्तार क्या है और आउटफ्लो की रफ्तार क्या है। अगर मान लीजिए कि पानी आ रही है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड से और जा रही है यहाँ पर 60 मीटर क्यूब पर सेकंड से, तो यहाँ पर फ्लड के चांसेस नहीं बनेंगे कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है। लेकिन इनफ्लो है 50 मीटर क्यूब पर सेकंड और आउटफ्लो है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, मींस वाटर यहाँ पर ज्यादा स्टोर्ड होगा और ये वाटर स्प्रेड करेगा, दैट इज द चांसेस ऑफ फ्लड्स। तो हम ये पता करते हैं एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्लड राउटिंग प्रोसीजर। फ्लड राउटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक necessary to determine solution of floods, right? And by making a reservoir, floods can be controlled. तो मैं कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग देखेंगे फ्लड्स राउटिंग के टॉपिक में। सो ये था हमारा इंट्रो पार्ट पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, कि हमें फ्लड्स पे ही पहुंचना है। और ये जो आपने देखा है, जो मैंने चैप्टर 2 लिखा था यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट और चैप्टर 3 हाइड्रोग्राफ, तो एग्जैक्टली हाइड्रोग्राफ जो है वो फ्लड्स के इस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट भी इस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का वेरियस मेथड्स है जो हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो वन बाय वन हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर चैप्टर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट हमारा एम ये होगा, हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में हाइड्रोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, राइट? सो हाइड्रोलॉजी इट इज द साइंस which deals with the right. It is a science which deals with the occurrence of water, its flow on the ground, and movement of moisture into the atmosphere, right? So it is the science which deals with the occurrence of water, its flow on the ground, and movement of moisture into the atmosphere. Occurrence of water, इनकी flow और इनकी movement, मीन्स पानी का आना, इनका flow करना और इनका निकल लेना। तो जनरली दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, दिस इज इवेपोरेशन, दिस इज रन ऑफ, और ग्राउंड के अंदर जो पानी जाएगी दैट इज टर्म्ड एज इनफिल्ट्रेशन, राइट? दैट इज टर्म्ड एज इनफिल्ट्रेशन। एंड नाउ वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन हियर इज व्हाट क्वेश्चन, व्हाट इज difference between hydrology and engineering hydrology? Right, what is difference between hydrology and engineering hydrology? तो इनका आंसर होगा द स्टडी विच इज मेनली कंसर्न विथ एकेडमिक एस्पेक्ट्स। मैं बोल रहा हूं, आप नोट्स में लिख लेंगे एस्पेक्ट्स, पॉज करके मेरे वॉइस को आप दोबारा रिपीट करेंगे और फिर आप इनको लिखेंगे। द स्टडी विच इज कंसर्न मेनली विथ एकेडमिक एस्पेक्ट्स इज नोन एज हाइड्रोलॉजी, वेयर एज द स्टडी विच इज कंसर्न विथ engineering applications, right? Engineering applications like precipitation, evaporation, infiltration, runoff, floods, droughts, and estimation of various water resources is known as engineering hydrology. So I repeat my statement, just you can check and you can write. The study which is mainly concerned with academic aspects is known as the hydrology, and the study which is concerned with engineering applications such as precipitation, evaporation, infiltration, runoff, floods, droughts, and estimation of various water resources is known as engineering hydrology. I mean to say कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको थोड़ा ब्रीफ करो, कैसे करोगे आप
एकेडमिक एस्पेक्ट्स का मतलब ये हुआ, जैसे देखो क्या होती है कि मान लो 90 से डेटा हमारा चलते आ रहा है 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो इन बैक ईयर्स के डेटा को देख के हम बता देते हैं कि नहीं, रेनफॉल जो है इसी रेंज में आएगी, 100 to 120 के रेंज में आएगी, राइट। सो दिस इज हाइड्रोलॉजी बाय मीन्स ऑफ एकेडमिक एस्पेक्ट्स। एकेडमिक्स का मतलब हो गया बैक ईयर रिकॉर्ड्स, बैक ईयर रिकॉर्ड्स, राइट। अब यहां पर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि जिस साल जितनी बारिश हुई बाय मींस ऑफ रेन गेज, जो हमने रीडिंग ली है उस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग जस्ट वी विल चेक कि एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल इस कैचमेंट की कितनी आ रही है। तो वो जो एवरेज रेनफॉल आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि इतनी रेनफॉल आ रही है। मींस अगर मान लीजिए कि रिवर बेसिन ज्यादा है, बड़ी है चैनल, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा वहां से। तो मान लीजिए 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई जो कि रेनगेज ने मेजरमेंट किया, लेकिन 40 सेंटीमीटर इवेपोरेशन हो गई, तो अब ग्राउंड पे हमारा बचा कितना, 100 - 40 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर रन ऑफ में जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर कुछ हमारा इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, 40 सेंटीमीटर इवेपोरेशन हो गया, 10 सेंटीमीटर इन्फिल्ट्रेशन हो गई, तो अब जो ग्राउंड पे पानी है वो कितनी है, 100 - 40 - 10 दैट इज 50 सेंटीमीटर इज ऑन द ग्राउंड। तो ये जो रन ऑफ वाटर है यही इस रिवर बेसिन में जाएगा और उस रिवर बेसिन में डिस्चार्ज क्रिएट करेगा। तो इस रन ऑफ को जनरली जो डायरेक्टली ऊपर से जाता है उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं और सरफेस रन ऑफ बोलते हैं और इफेक्टिव रेनफॉल भी बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी इसको। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ वेरियस वाटर रिसोर्सेज, इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरी एनालिसिस होगी दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो आप लिखेंगे यहां पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट। इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है इसका, प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन कंटिन्यूज फॉरएवर, therefore a balance is maintained between the two, and this process is known as hydrological cycle, right? Precipitation and evaporation continues forever, therefore a balance is maintained between the two and this process is known as hydrological cycle or water cycle, right? तो देखिए यहां पर क्या है, ये वाटर साइकिल। आप स्टेटमेंट को देख लीजिए, पॉज करके आप इसको लिख लेना अपने नोट्स में, मैं अभी डिलीट कर रहा हूं। इसको जरा हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए ओशियन है and this is the free surface of water and this is the ground level, right? This is the ground level. अब यहां पर मान लीजिए कि ये जो है हमारी दिस इज प्रेसिपिटेशन, दिस इज प्रेसिपिटेशन। अब जैसे वाटर इसमें एंटर करेगी, जैसे एंटर करेगी वाटर ग्राउंड पे आएगी, जो फर्स्ट प्रोसीजर हमारा होगा वो क्या होगा, यू नो, क्योंकि सॉइल सरफेस जो है हमारी वो क्या है, पोरस होती है, राइट। तो इसके वॉइड्स खुले पड़े हैं, ये अनसैचुरेटेड है, देन इमीडिएटली इट विल एब्जॉर्ब द वाटर। तो जो वाटर हमारी एब्जॉर्ब होगी वहां से वो इन्फिल्ट्रेशन होगी। सो फर्स्ट प्रोसीजर इज इन्फिल्ट्रेशन है, राइट, दिस इज इन्फिल्ट्रेशन। अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि रेनफॉल हो रही है 10 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार से, लेकिन इस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मींस वाटर खींचने की जो रफ्तार है
वो 2 सेंटीमीटर पर आवर की रफ्तार है, मीन्स 2 से ज्यादा ये खींच ही नहीं सकता, लेकिन हम इनफ्लो कितना दे रहे हैं इसको, 10 का दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर आवर का दे रहे हैं, तो बाकी वाटर हमारा क्या जाएगा, वो रन ऑफ हो जाएगा, मीन्स यहां से वो इस रिवर बेसिन में जाएगा, मीन्स चैनल में जाएगा, राइट। सो दिस इज, जो ऊपर से हमारा वाटर जाएगा इसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ, राइट। और यहां से एग्जैक्टली ये जो वाटर हमारी इन्फिल्ट्रेट हो रही है, ये वाटर एग्जैक्टली क्या होगी, यहां से सीपेज करके ये इस चैनल को ज्वाइन कर सकती है, राइट। तो क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर से है तो इनको हम बोलेंगे सब सरफेस फ्लो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाटर जो है डाउन भी जाएगी, बिकॉज दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल, GWT, राइट। अब यहां से जो वाटर है हमारी वो कहां जा रही है, इस ग्राउंड वाटर टेबल में जा रही है, ठीक है। और इस ग्राउंड वाटर टेबल के जरिए जो वाटर हमारी इसको ज्वाइन करेगी इस चैनल को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सबसरफेस फ्लो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं लिख दूं यहां पर, दिस इज सबसरफेस फ्लो, राइट। अब यहां पर जरा इसको लिख दो, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि ये जो है हमारा वो सीपेज के थ्रू बहुत ही जल्दी आया है। जैसे मान लो आप एक बंच ऑफ सैंड, एक बैग सैंड आप सैंड यहां पर गिराओ और उस पे ऊपर से पानी गिराओ आप, तो आप देखोगे कि उसका जो सरफेस है उस पर बहुत जल्दी से वेट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सीपेज हो गया वहां से इमीडिएटली। लेकिन बिल्कुल बॉटम, अगर उसकी थिकनेस इतनी है तो बॉटम तक पानी थोड़ा लेट से पहुंचेगा, राइट। इधर सीपेज मिला तो पानी है, उसको जिधर का रास्ता मिलेगा वो उधर से निकल लेता है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है हमारा, ये सीपेज है और सीपेज बहुत ही जल्दी होता है, राइट। आप पढ़ोगे सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो आप परमेबिलिटी में, परमेबिलिटी रेफर्स टू द वाटर सीपेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पोर्स एंड देयर इंटरकनेक्टिविटी, राइट। तो वाटर सीपेज कैपेसिटी परमेबिलिटी होती है, ये पानी जो है हमारा इधर से प्रोसीड करके इस चैनल में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस रन ऑफ। लेकिन क्योंकि ये बहुत जल्दी होती है इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दिस इज प्रॉम्प्ट इंटर फ्लो और सीपेज फ्लो, राइट। और क्योंकि ये बहुत समय के बाद होगी, इसको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिलेड फ्लो और बेस फ्लो, राइट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पूरी हमारी एनालिसिस में, डिलेड फ्लो और बेस फ्लो का। वो मैं डिस्कस इसी चीज को मैं एक बार और डिस्कस करूंगा जब मैं आपको हाइड्रोग्राफ पढ़ाऊंगा तो, राइट। तो बेसिक्स आप यहां से स्ट्रॉन्ग रखेंगे। जो पानी डायरेक्टली इसमें चला गया दैट इज कॉल्ड बहुत जल्दी चला गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और सीपेज फ्लो। और जो लंबे समय के बाद गया मींस आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बेस फ्लो और डिलेड फ्लो। एंड द डेफिनेशन ऑफ बेस फ्लो इज वेरी क्लियर, it is that interflow which will join the main stream after a long period of time through the groundwater table, right। अब अगर मान लीजिए इसके नीचे ये स्ट्रेटा है हमारा, मान लीजिए कि रॉक और समथिंग है, ये एनालिसिस वेल हाइड्रोलिक्स की होती है विच विल बी कवर्ड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, राइट, या फिर एनी अदर सब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो फर्दर जो वाटर जो हमारी डाउन आ रही है दैट इज टर्म्ड एज percolation, right। So infiltration and percolation are both process, I repeat the statement, infiltration and percolation are both process in which water moves in the pores of the soil, and the main difference between these two processes is that infiltration occurs closer to the surface of the soil, whereas the downward movement of infiltrated water through the groundwater table is called percolation। तो ये main difference होती है। तो infiltration जो है soil surface के क्लोज होता है एंड इंटरफेस इज इसेंशियल इन इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए मैं इसको आपको लिखवा भी देता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड सीपेज। मैं बोल दूंगा एक बार, स्पेशली मैं बोल दूंगा इस पे, राइट, नोट्स में। तो यहां पर आप देखिए, अब जो ये तो इनफ्लो की बात हो गई, अब इस चैनल में पानी कहीं किसी स्रोत से नहीं आ सकता, राइट। अब यहां पर क्या है, ये जो वाटर हमारी निकलेगी यहां से, दिस इज इवेपोरेशन, दिस इज इवेपोरेशन, राइट। अब यहां पर अगर कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है,
देखिए, तो इनके सर्वाइवल के लिए इनको फोटोसिंथेसिस करना होगा और इस फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेगा यहां से. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन. ट्रांस का मतलब होता है थ्रू एंड पैरेशन इज थ्रू द प्लांट. ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स इन द पोर्स ऑफ द सॉइल एंड ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स. सॉरी, मैंने गलत बोला थोड़ा सा, मैंने इन्फिल्ट्रेशन का बोल दिया. ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट रूट सिस्टम एंड एस्केप थ्रू लीफ ऑफ द प्लांट. ये लीफ है, उनसे निकलेगा वाटर हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपैरेशन. अब यहां पर क्या है कि जिस सॉइल पे ये लगी पड़ी है यहां प्लांट्स, वहां पर सॉइल की मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट 10% थी, तो प्लांट्स ने अपने ट्रांसपैरेशन के लिए 2% ही यूज किया, लेकिन 8% अभी भी बचा है. इन हॉट सनी डेज मान लीजिए कि वाटर हमारी निकली और सॉइल सूख गया, ड्राई हो गया, उसकी मॉइस्चर कंटेंट 2% या 3% रह गई, तो बाकी वाटर गया कहां? इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में गया. सो दिस इज इवेपोरेशन, राइट. सो दिस इवेपोरेशन प्लस दिस ट्रांसपैरेशन इज इक्वल टू evapotranspiration. Right? This is called evapotranspiration. Means I repeat the statement, evapotranspiration is sum of evaporation plus transpiration. I repeat the statement in a very detailed form right now. Evapotranspiration is sum of water lost by plants through the transpiration and evaporation from the soil or surrounding water bodies to the plant. Right? Evapotranspiration is the sum of water lost by plants through transpiration, means through transpiration, and evaporation from the soil or surrounding water bodies to the plant. Right? तो एक बार इसको और हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि what is the necessity of evapotranspiration? Actually, we are not competent to find the quantity of transpiration allowed. That's why we are taking the help of this term. तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक फ्लावर पॉट में प्लांट लगाते हैं और आप डेली 1 लीटर पानी देते हैं उस फ्लावर पॉट में, बट बिफोर गिविंग 1 लीटर वाटर टू दिस फ्लावर पॉट आपने चेक किया कि सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट 10% थी. 10 दिन तक 1-1 लीटर पानी आपने दिया, 10 लीटर दिया आपने पानी, राइट. लेकिन 10वें दिन के बाद जब आपने चेक किया तो अगेन मॉइस्चर कंटेंट सेम ही है, हमारी कांस्टेंट है. तो ये 10 लीटर पानी गया कहां? 10 लीटर पूरा का पूरा प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया क्या? नहीं, सॉइल से भी कुछ पानी निकली होगी. सो दिस इंटायर क्वांटिटी इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन, राइट. सो जस्ट हम लोग इसको जरा सा एक बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, जो मैंने फ्लावर प्लॉट्स की एग्जांपल आपको दी है अभी, दैट इज in a very modified form, that is called lesimeter. So lesimeter is a device which is used to measure the evapotranspiration, right? तो हम लोग देखेंगे उसको आगे. अब यहाँ पर क्या है कि ये इनफ्लो है और ये सारे आउटफ्लो है. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 10 लीटर पानी यहाँ से आई है तो एग्जैक्टली 10 लीटर पानी ही निकलेगी. हो सकता है 10 लीटर पानी आई है, 2 लीटर बाहर निकली इन सारे प्रोसीजर से, बट 8 लीटर पानी हमारा अभी भी इस चैनल में है, राइट. 8 लीटर वाटर. सो ये क्या करेगा? इस चैनल के स्टोरेज को बढ़ाएगा. आप देखते हैं बरसात के दिनों में, मॉनसून सीजन में क्या होती है, रिवर में पानी का लेवल काफी अप हो जाता है. मीन्स इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, दैट्स वाई पानी बढ़ रहा है. बैंक बैलेंस, आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, खर्च 10,000 रुपए पर मंथ है, 90,000 का बैलेंस हर महीने आपका बढ़ रहा है, राइट. आपकी इनकम 1 लाख है, खर्च 1,10,000 रुपए, 10,000 बैंक बैलेंस पर मंथ आपका घट रहा है, राइट. मींस अल्टीमेटली आप क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, करेक्ट. तो देखिए यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टोरेज है हमारी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, चैनल की इस स्टोरेज की बात कर रहा हूं मैं. सो दिस इज द स्टोरेज, डेल्टा एस, दैट इज change in storage is equal to final storage minus initial storage. That is final storage minus initial storage, right? Final storage minus initial storage. Okay, so that was the final storage minus initial storage, that is delta S. इनकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है. अगर इनफ्लो की वैल्यू काफी ज्यादा है, आउटफ्लो की वैल्यू कम है, तो डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इनफ्लो की वैल्यू काफी कम है, पानी आ कम रहा है, निकल जाता रहा, तो धीरे धीरे ये स्टोरेज क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा. जैसे देखो ना आप, दिस इज एस आई एंड दिस इज
एस एफ, राइट। अगर इनफ्लो कम है, पानी आ कम रहा है, निकल जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी का लेवल डाउन हो जाएगा आपका। इनफ्लो आउटफ्लो पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वाटर बजट इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसको आगे चलकर, ठीक है। ये आपका मैंने बेसिक्स बनाया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। तो मैंने आपको ये बोला था नोट में मैं आपको बताऊंगा इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड सीपेज में डिफरेंसेस। तो चलिए जरा सा यहाँ पे नोट में ही कवर करते हैं इसको। नोट में लिखते हैं हम लोग इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड सीपेज, राइट। तो देखिए आप लिख लीजिए इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन आर बोथ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स इन द पोर्स ऑफ द सॉइल। I repeat my statement, infiltration and percolation are both process in which water moves in the pores of the soil. The main difference between these two processes is that infiltration occurs closer to the surface of the soil and interface is essential in infiltration process. Whereas in percolation, water moves from unsaturated zone to saturated zone, right? Unsaturated zone to saturated zone. तो देखिए ये जो है ना, ये सॉइल सरफेस है आपका, ग्राउंड लेवल। यहां से जो वाटर जो इन्फिल्ट्रेट, जो वाटर नीचे जा रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। वेयर एज द लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेटेड वाटर थ्रू द सॉइल और ग्राउंड वाटर टेबल, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। दैट इज कॉल्ड परकोलेशन, राइट। और यही वाटर जब हमारी एब्रप्ट मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड सीपेज। Means permeability refers to the water seepage capacity of the soil and it depends on the size of the pores and their interconnectivity. For more porous soil, seepage is more and for less porous soil, seepage is less. Right? चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा, एक नोट नंबर 2 पे आते हैं, इनिशियल लॉसेस। ये क्या है? नोट 2, इनिशियल लॉसेस, राइट। तो फर्स्ट है इंटरसेप्शन लॉस और सेकंड है डिप्रेशन स्टोरेज। इंटरसेप्शन लॉस और डिप्रेशन स्टोरेज। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको ऐसा समझाता हूं। देखिए दिस इज अ ग्राउंड लेवल और ये है हमारा डिप्रेशन है, कोई भी डिच है मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए जैसे रेनफॉल हो रही है हमारी यहां से, व्हेन इट रेन्स ओवर ए कैचमेंट, देन नॉट ऑल द वाटर फॉल डायरेक्टली ऑन टू द ग्राउंड सर्फेस। बिफोर इट रीचेज ऑन द ग्राउंड, सम पार्ट ऑफ इट मे बी रिसीव्ड बाई वेजिटेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बारिश की जो बूंदें होती है वो हमारे ग्राउंड पे आती है। कुछ पार्ट जो है वेजिटेशन के कवरेज से भी हमारा क्या होता है, कवर्ड हो जाता है। जैसे देखो जब चाइल्डहुड में स्कूल जाते थे, बारिश होती थी तो कहाँ, पेड़ के नीचे आते थे हम लोग, क्योंकि ये पानी जो है इसको ये इंटरप्ट करके रखा है, जस्ट अम्ब्रेला का काम कर रहा है, ये रोक के रखा है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, ये वाटर अगेन ग्राउंड पे नहीं आता हमारा, ये ऊपर से ही इवेपोरेट बैक हो जाता है। मीन्स आई मीन टू से, अकॉर्डिंग टू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द सेम टर्म इन दिस वे, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट, राइट। When there is a rain, this is the water droplet. And now when there is a stop, when rain is stopped, then what will happen? This water will evaporate from here, and this loss is called interception loss. Interception loss. मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, आप लिख भी लेना, इसको पॉज करके वीडियो को बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना। When there is rain, then not all the precipitation fall directly on to the ground surface. जब बारिश होती है देन पूरी प्रेसिपिटेशन ग्राउंड सरफेस पे डायरेक्टली नहीं आती है। When there is a rain, then not all the precipitation fall directly onto the ground surface. Before it reaches on the ground, it must be received by vegetation and consequently evaporated back to the atmosphere. Means वहीं से evaporation में वो बैक हो गया। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन
1 सेंटीमीटर पानी हमारा यहां से इवेपोरेट पैक हो गया, राइट। बचा कितना? 9 सेंटीमीटर। तो अब जो रन ऑफ होगा या फिर जो प्रेसिपिटेशन आपकी होगी, जो जिसके लिए आप मेजरमेंट्स कर रहे हो, आपके लिए प्रेसिपिटेशन कितनी होगी? अब 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो आप रिसीव करोगे वही तो इनफ्लो होगी ना। मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख है और 28% जीएसटी कट गई, चलिए 10% जीएसटी कट गई, टैक्स कट गई आपकी, तो 90,000, तो इन हैंड तो 90,000 आई आपकी। तो अब जो आपका जो बजट बनेगा वो तो 90,000 बनेगा, लड़के थोड़ी इनकम टैक्स वाले से ले लोगे आप, तो 90,000 ही बजट बनेगा आपका, 90,000 के अकॉर्डिंग ही आपकी एक्सपेंडिचर होगी। तो अब जो हमारे चैनल में पानी जाएगा वो इस वाटर के करस्पॉन्डिंग जाएगा, 9 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर ये तो हो गया इंटरसेप्शन लॉस। डिप्रेशन स्टोरेज क्या होती है? आप देखते हैं कि जब बारिश होती है ना, तो जैसे सरफेस, रोड सरफेस वगैरह या कहीं पे भी आप देखते हो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं, राइट। तो वो जो पानी है हमारा वो यहीं पे रह गया, वो जा ही नहीं पाया। जैसे मान लीजिए कि आप 200 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो, तो जब क्लास खत्म होती है तो आप 200 बच्चे एक ही साथ निकल लेते हो, मींस दैट इज द पार्ट ऑफ सरफेस रन ऑफ। लेकिन 2 बच्चा अगर रह जाता है यहाँ पे, तो वो अब अकेले जाएगा, वो उस क्राउड का हिस्सा ही नहीं बनेगा कभी भी, वो अलग हो गया, वो सेग्रीगेट हो गया। मींस आई मीन टू से कि यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और ये हमारा सरफेस रन ऑफ का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सरफेस रन ऑफ, तो ये वाटर हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, इसमें रह गया, ये डिच है, ठीक है, दिस इज डिच। अब ये वाटर हमारा यहां से यहां जाके ये हो गया चैनल, दैट इज कॉल्ड रिवर, ये यहां चला गया, राइट। तो रिवर में कितना वाटर गया? ये तो पूरा चला गया। तो अभी आप देखिए, पहले ये इस डिच को भरेगा, तभी ये रिवर में पानी हमारा यहां से अब ऐसे जा पाएगा, राइट। उछल के थोड़ी चला जाएगा, उड़ के नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है, जब बारिश खत्म हो गई, सारा ड्रॉपलेट्स आपका जा चुका है, ये पूरा का पूरा ड्रॉपलेट्स कहां चला गया हमारा? इस रिवर में चला गया, राइट, इस रिवर में चला गया पूरा ड्रॉपलेट्स। ये क्या हो गया हमारा? बच गया। तो जाना कितना पानी चाहिए था? 9 सेंटीमीटर। रह कितना गया यहाँ पर? मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर। तो गया कितना यहाँ पे? 8.5 सेंटीमीटर। तो इस रिवर में जो डिस्चार्ज हुई वो कितने वाटर के करस्पॉन्डिंग हुई? इसी 8.5 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग इस रिवर में डिस्चार्ज हुई हमारी। और ये 0.5 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? दैट इज कॉल्ड लॉस। और इसे कहते हैं हम लोग डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, डिप्रेशन स्टोरेज का भी आप डेफिनेशन लिख लोगे। व्हेन देयर इज अ रेन, देन बिफोर इट फ्लो ऑन द ग्राउंड, it must fill all the depressions. When there is a rain, then before it flow on the ground, it must fill all the depression, and the volume caught by these depressions at this ditch is called the depression storage, right? तो एग्जैक्टली यहाँ पर डिप्रेशन स्टोरेज क्या हो गया, जो वाटर हमारा रेन वाटर यहाँ पर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज। तो चलिए वन बाय वन हम लोगों का अब एम क्या है। जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने पढ़ा तो हमने देखा प्रेसिपिटेशन। देखिए ये तो बच्चे भी पढ़ते हैं क्लास 6-7 वाले कि वाटर साइकिल क्या होती है, लेकिन बच्चे सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन कंटिन्यूज फॉर एवर, पानी का आना और पानी का जाना, दैट्स द वाटर साइकिल। मीन्स बच्चों के लिए ये स्टेटमेंट है। आप देखिए प्रेसिपिटेशन, उसके बाद क्या होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद क्या होगा क्लाउड बनेगा, और ये क्लाउड क्या हो जाएगा हमारा कंडेंस्ड हो जाएगा, लूज होगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड देन अगेन प्रेसिपिटेशन। ये बच्चों के लिए है। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, क्लाउड बनेगा, क्लाउड कंडेंस्ड होगा, देन अगेन बारिश होगी, राइट। बट हम थोड़ा सिस्टमेटिकली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सारे टर्म्स को ऐसा करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो था हमारा प्रेसिपिटेशन, तो आप अपने नोट्स में लिखिए प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, राइट। प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। नोट्स को अच्छे से बनाएंगे, नोट्स काफी खूबसूरत बनने चाहिए, ऐसा नहीं कि इस वीडियो पे आप रहेंगे, नोट्स काफी अच्छा बनना चाहिए। सो जस्ट देखें यहां पर प्रेसिपिटेशन, फर्स्ट आप लिख लीजिए हेडिंग प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो अभी मैं लिखता हूं प्रेसिपिटेशन हियर, प्रेसिपिटेशन, राइट। The term precipitation denotes all forms of water that reaches on the earth from atmosphere, right?
So the term precipitation denotes all forms of water that reaches on the earth from atmosphere. Now there are various forms of precipitation. First, rain. Right, rain. Precipitation डिफरेंट फॉर्म्स में होगी, रेन, स्नो, ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट, हेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम लोग उसको एक बार ना उस पर भी देख लेंगे, वीडियो क्लिप पे भी देख लेंगे. रेन, दिस टर्म इज generally used when water droplets are of size 0.5 mm to 6.0 mm. This term is generally used when water droplets are of size 0.5 mm to 6.0 mm. आपको ये याद रखना होगा for objectives, right? अब देखिए इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है एज पर द इंटेंसिटी, रेन की क्लासिफिकेशन होती है एज पर इंटेंसिटी. मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ रेन. तो देखिए अगर मान लीजिए इंटेंसिटी की मैं बात करूं, इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर, और यहां पर हम लोग लिखते हैं रेन, राइट. तो अगर इंटेंसिटी लेस देन 2.5 mm पर आवर की है तो हम इसको बोलते हैं लाइट रेन, राइट. और अगर इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर टू 7.5 mm पर आवर की है तो इसको हम बोलते हैं मॉडरेट रेन, मॉडरेट रेन. और अगर इंटेंसिटी ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की है तो इन्हें हम बोलते हैं हैवी रेन, राइट. दिस इज कॉल्ड हैवी रेन. सो हमने इंटेंसिटी को के अकॉर्डिंग रेंज को क्लासिफाई कर रखा है. अब थोड़ा अपने आईक्यू को डेवलप करो यहाँ पे कि ये जो रेन है, अब आप आइडेंटिफाई करो कि जैसे इंडिया है तो सारे स्टेट्स में जो रेन होती है वो किस टाइप की रेन होती है. तो इन जनरली सॉरी इन जनरली वी आर ऑब्जर्विंग द डेटा हेयर 2.5 mm to 7.5 mm per hour rain in a catchment of Bihar, UP and some portion of West Bengal and Delhi, right? And less rainfall, little bit intensity is less than 2.5 mm per hour, and some things just we are observing in your Rajasthan and so on. But this is for northeast area like Cherrapunji and some things like this, greater than 7.5 mm per hour. तो ये तो हम लोग ज्योग्राफी में भी थोड़ी स्टडी करते हैं, बट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरतें पड़ेगी जस्ट वी विल सी द सेम थिंग्स. अगर जरूरत पड़ेगी मैं देखता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है मुझे तो मैं इनका हेल्प लेता हूँ, एटलस का हेल्प लूंगा और मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर से दिखा दूंगा कि कौन से जोन में कितनी होती है. बट आप खुद भी इसको कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट term. Okay, so if our time will permit, then definitely just I will dictate the same things by means of map of India and atlas. तो देखता हूं इसको जरा सा. अब यहां पर क्या है कि ये तो इंटेंसिटी की क्लासिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ रेन एज पर इंटेंसिटी हो गई हमारी. अब यहां पर इंडिया में देखिए आप कि इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है. चलिए इसको एवरेज देखने से पहले एक वर्ड और यूज करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. If total rain in a day is more than 2.5 mm, then that day is called a rainy day, right? अब आप जरा अपने दिमाग पे स्ट्रेस लगाओ कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, right? If total rain in a day is more than 2.5 mm, then that day is called rainy day. चलो मैं इस पॉइंट पे आने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे मान लो कि अब मान लो कि टुडे इज मंडे, राइट? और मंडे को आपने क्या किया, आपने स्टडी करी 10 घंटे की इफेक्टिव सेल्फ स्टडी आपने करी मंडे को, मन बहुत खुश हो गया आपका, 10 घंटे आपने पढ़ाई करी है. ट्यूसडे को आप 10 मिनट पढ़ाई करे हो, सेल्फ स्टडी आपने 10 मिनट करी है, राइट? और वेडनेसडे को आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी करी है आपने. तो अब यहां पर देखो कि क्या आपने पढ़ाई 3 दिन करी है या फिर 1 दिन करी है या 2 दिन आपने पढ़ाई करी है, ये कैसे आप जज करोगे?
मीन्स इफेक्टिव स्टडी जो आपकी हुई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हुई या फिर सिर्फ मंडे हुई या फिर मंडे और वेडनेसडे हुई। तो देखो 10 मिनट की सेल्फ स्टडी कोई मायने नहीं रखती है। उसमें क्या पता आपको पेज पलटने में ही 10 मिनट लग गया होंगे, वो 10 मिनट का कोई इंपॉर्टेंस रहता ही नहीं है, राइट। लेकिन जो आपने इधर जो स्टडी करी है 10 घंटे करी आपने, फिर 3 घंटे करी आपने, तो आपकी इफेक्टिव स्टडी 13 घंटे 10 मिनट नहीं मानी जाएगी, 13 घंटे ही मानी जाएगी। मीन्स 2 दिन आपकी इफेक्टिव स्टडी यहाँ पर मानी जाएगी, राइट। तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मानसून सीजन 15 जून टू 15 सितंबर है, राइट, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 3 महीने का मान लो 90 डेज ऑन एन एवरेज मानसून सीजन है आपका। लेकिन इस 90 दिन में आपने देखा कि 70 डेज बारिश हुई, इस 90 दिनों में 70 दिन बारिश हुई। लेकिन इस 70 दिन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ही ऐसा था जिसमें 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हुई है, राइट। लेकिन बाकी जो 30 दिन थे उसमें तो बारिश 1 mm, 0.5 mm, 1 mm, 0.5 mm, 2 mm एंड सो ऑन ये थी। तो वो 30 दिन जो है वो रेनी डे में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2.5 mm से लेस जो वाटर है हमारी, राइट, वो चैनल तक शायद पहुंच नहीं पाएगी या फिर चैनल में अपना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट गाइडलाइन गिवन बाय मी, दिस इज द गाइडलाइन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, राइट। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस टर्म का जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर 90 डेज की मॉनसून है और इस 90 दिनों में आपने ये पाया कि 70 दिन बारिश हुई है और बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, आपने मान लिया अपने अकॉर्डिंग, बट जब आपने डेटा को चेक किया, जो रेनगेज से या रडार से आपने डेटा लिया है उसको जब आपने चेक किया, देन यू फाउंड भाई साहब 70 डेज में ओनली 40 डेज ही ऐसा है जिसमें बारिश 2.5 mm से ज़्यादा हुई है। बट इन 30 डेज जो बारिश हुई है हमारी वो क्या है, 30 डेज जो बारिश हुई है हमारी वो 2.5 mm से काफ़ी कम है या फिर 2.5 mm से कम है। देन वी विल report to the higher authority that the rainy day is only 40 in this monsoon season, right? तो 40 दिनों का मॉनसून सीजन इस बार का तुम्हारा, मतलब 40 दिन ही तुम्हारी बारिश हुई इस बारी। तो इस टर्म का यहाँ पर लिटरल मीनिंग यही होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे देखिए आप एवरेज रेनफॉल इन इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया एवरेज एनुअल rainfall in India, average annual rainfall is about 120 centimeter per annum or per year, which is greater than world average precipitation of 100 centimeter पर एनम, राइट। तो मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया है इन इंडिया, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ये वर्ड मैंने यूज किया है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो भाई साहब एवरेज एनुअल रेनफॉल आप निकालोगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो एवरेज एनुअल रेनफॉल, जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूं एवरेज एनुअल रेनफॉल हमें निकालनी है 2020 की, अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 का एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालना है। तो 2020 का अभी आप नहीं निकाल सकते, पूछने वाला ही इडियट है यहाँ पर। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, बिकॉज द वाटर ईयर इज, इट्स वेरी सिंपल। जो हमारी गाइडलाइंस होती है, आप स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लो या फिर स्टेट फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ले लो, सेंट्रल वाटर कमीशन ले लो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले लो। मैं आपको हायरार्की बता दूं, क्योंकि जब आप जाओगे एज एन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जब आप क्वालिफाई करोगे IES और जब एज ए ESC सर्वेंट आप बन के जाओगे वहां पे, और सपोज करो कि आप CWC में जाते हो, देन जो डेटा आप रिपोर्ट करोगे वो किसको रिपोर्ट करोगे? वो आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करोगे, IMD को रिपोर्ट करोगे, राइट। और बिफोर दैट CWC को कौन रिपोर्ट करेगा? स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो अब यहां पर क्योंकि वैल्यूएबल डेटा स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ही होती है, तो अब जो मैं ये कह रहा हूं आपको वाटर ईयर, ये क्या है? तो वाटर ईयर जो, जैसे मैंने कहा कि 2020 का, राइट नाउ वी आर इन 2020 एंड दिस इज द मंथ ऑफ जून, सो सपोज आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 2020, देन दिस इज नॉट द प्रॉपर क्वेश्चन, राइट, दिस इज नॉट द प्रॉपर क्वेश्चन, बिकॉज व्हाई? 2020 अभी चल रही है, तो 2020 खत्म होगी तभी तो आप निकालोगे ना इसका एवरेज एनुअल रेनफॉल। अभी जैसे मान लो मुझे एज बीइंग ए पेरेंट, मुझे आपका एवरेज एनुअल, बीइंग ए गार्जियन, मुझे आपका एवरेज ये निकालना है कि आपने एवरेज कितनी इफेक्टिव स्टडी करी है इस साल। तो हम कैसे निकालेंगे? ये साल खत्म होगी तब निकालेंगे या इन बिटवीन ही निकाल के छोड़ देंगे? नहीं, साल को खत्म होने का वेट करो,
तो साल खत्म कब होगी? 31 दिसंबर को होगी? गलत, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाटर ईयर जो होती है हमारी, वो होती है 1 जून टू 31 मई। दिस इज द वाटर ईयर। तो फॉर ए वाटर सर्विसेज, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, आपका जो साल खत्म होता है वो कब होगा? 31 दिसंबर को खत्म नहीं होगा, आपका साल खत्म होगा 31 मई को। तो अगर मैं आपसे पूछूं 31 मई को, 31 मई 2021 को मैं पूछता हूं आपसे, या 1 जून 2021 को पूछता हूं कि 2020 का डेटा क्या है, देन यू आर क्वाइट कंफर्टेबल टू गिव मी द एप्रोप्रिएट डेटा, राइट? तो 31 मई को जब हमारा वाटर ईयर खत्म होता है तभी हम उसका एवरेज एनुअल रेनफॉल फाइंड आउट कर सकते हैं। बिफोर दैट वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू फाइंड। अब यहां पर इस एवरेज एनुअल रेनफॉल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि इस साल बारिश जो हुई वो 110 सेंटीमीटर हुई। लास्ट ईयर जो बारिश हुई थी वो 190 सेंटीमीटर हुई, मान लीजिए। उसके पहले 120 सेंटीमीटर हुई, राइट? तो देखिए बहुत फ्लक्चुएशन आ रही है, 110, 190, 120, 200 एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दिस। तो कैचमेंट को क्या कहोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे कैचमेंट को? तो इस एवरेज एनुअल रेनफॉल को निकालने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस है। क्या? इन ऑर्डर टू फाइंड एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए प्लेस, इसको हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं लिख देता हूं, आप अपने नोट्स में बिल्कुल रखेंगे। नोट्स बहुत ही क्लियर बनाएंगे आप इस वीडियो के भरोसे नहीं रहेंगे कि ये हमने सेव कर लिया या फिर हमने इसकी कॉपी पेस्ट कर ली हैंडीकैम से, तो हम हमेशा देख लेंगे, वो आपका रखा ही रह जाएगा, पूरी जिंदगी आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बिंग टीचर आपको बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी रखी रह जाएगी, आप कभी नहीं देखेंगे, राइट? आपने बचपन में बहुत डीवीडी और ये परचेज किया होगा, दोबारा कभी नहीं देखा होगा आपने, वो परचेज करके घर में रखा हुआ है, तो वो कभी आप देखोगे नहीं। सो बेहतर है कि एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप इसका, तभी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखेंगे, in order to find average annual rainfall of a place, a minimum of 30 years data are required and average of these 30 years data will give average annual rainfall of a place as per WMO guidelines, as per WMO guidelines, right? WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और IMD का मतलब होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे 30 इयर्स, तो अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज एनुअल रेनफॉल 2019 की कैसे निकालोगे आप, 2019 की, तो वही कर लो आप, 1989 से लेके 2019 तक का 30 साल देख लेना आप, 30 से डिवाइड कर दो, दैट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द सेम ईयर। 2020 का क्यों नहीं निकाल सकते, आपको पता चल गया। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, राइट? चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये रेन तो हो गई, अब दूसरी फॉर्म जो है हमारी प्रेसिपिटेशन की, वो क्या है? स्नो, राइट? स्नो। तो आप लिखेंगे दूसरी फॉर्म स्नो। स्नो क्या होती है? देखिए, स्नो कंसिस्ट ऑफ ice crystal having average density of 0.1 gram per cc, right? The accumulation of snow may result into formation of ग्लेशियर्स। द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो मे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, जिसको हम हिमखंड बोलते हैं, ओके? इन इंडिया जनरली स्नो अकर्स इन हिमालयन रीजन, राइट? तो अब यहां पर देखो, स्नो कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल हैविंग एवरेज डेंसिटी ऑफ 0.1 ग्राम पर सीसी, द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो मे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स इन इंडिया जनरली स्नो अकर्स इन हिमालयन रीजन।
आइस क्रिस्टल मतलब बिल्कुल हल्का होगा ये, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, और ये हमारे ग्राउंड पे आएगा। आप देखेंगे ऊटी, मनाली, एंड हिमाचल, आप देखेंगे स्नो फॉर्मेशन हमारी ज़्यादा होती है, गैंगटॉक एंड समथिंग, दैट्स व्हाई दिस इज टूरिस्ट प्लेस एंड जस्ट यू आर एंजॉइंग इन दिस वेदर। तो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर हमारा, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, 0.1 ग्राम पर cc, काफ़ी हल्की होती है, पाउडरी मास, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा हमारे तक। सो दैट इज टर्म्ड एज स्नो हेयर, राइट। तो कई लोग ऐसा समझते हैं स्नो इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है स्नो। तीसरा है हमारा ड्रिजल, थर्ड इज ड्रिजल। इफ वाटर ड्रॉप्स are of size less than 0.5 mm and intensity of rain is less than 1 mm per hour, then it is classified as drizzle, राइट। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाटर ड्रॉप्स की जो साइज है वो, इफ वाटर ड्रॉप्स आर ऑफ साइज लेस देन, जस्ट 1 मिनट होल्ड प्लीज, if water drops are of size less than 0.5 mm and the intensity of rain is less than 1 mm per hour, then it is classified as drizzle। आप देखो रेन की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें वाटर ड्रॉप्स की साइज हमने ली थी 0.5 mm टू 6.0 mm, राइट। और इंटेंसिटी ऑफ रेन अगर लेस देन 2.5 mm थी, 2.5 mm टू 7.5 थी, तो हमने लाइट, मॉडरेट और हैवी रेन की क्लासिफिकेशन दी थी। बट यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेन अगर 1 mm से बराबर है तो हम कहेंगे कि ये ड्रिजल है, लेकिन उनकी साइज भी 0.5 mm से कम होनी चाहिए, मीन्स हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। बूंदाबांदी जो होती है ना, छोटी छोटी बूंदे जो आती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजल। नाउ राइट नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, ग्लेज, दैट इज कॉल्ड ग्लेज। This is glaze. When rain or drizzle comes in contact with solid body or ground at freezing temperature, at freezing temperature. When rain or drizzle comes in contact with solid body or ground at freezing temperature, then it forms ice coating, and this coating is called, glaze, and this coating is called glaze। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए ये सॉलिड बॉडी है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार यहां पर पार्क है, ठीक है, ये कोई कार पार्क है। अब मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर की वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, राइट, मीन्स कम है, बहुत कम है। जैसे मान लीजिए यूएस वगैरह में, स्विट्जरलैंड वगैरह में टेम्परेचर 0, 10, 5, 2, 3 यही रहती है। तो इन जनरल अगर मान लीजिए रेन ड्रॉपलेट्स यहाँ पर ऐसे आई, ये आई इस तरीके से, इस बॉडी पे आई, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होगी हमारी, इस तरीके से फैल जाएगी, इस पर स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड का मतलब फैलना, इस तरीके से फैल जाएंगे। और क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग है तो ये क्या होगा, एक बर्फ की परत बना लेगा। इस परत को हम कहते हैं ग्लेज, राइट। तो ऊपर से जो, जब हम ग्लेज की फॉर्मेशंस देखते हैं, जो ग्लेज हमारा प्रेसिपिटेशन का पार्ट है, ग्लेज बनता कैसे है, जनरली दिस इज फॉर्म बाय व्हाट, रेन और ड्रिजल। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स ग्राउंड पे या फिर किसी सॉलिड बॉडी से टकराएंगे जहां पर की टेम्परेचर फ्रीजिंग होगी, तो ये बर्फ की एक परत बना लेंगे और उसी परत को हम क्या कहते हैं, ग्लेज कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लेज हो गया। स्लिट एंड हेल, स्लिट एंड हेल, राइट। स्लिट एंड हेल, हेल को ओले बोलते हैं हम लोग। इट इज ए
frozen raindrops. It is a frozen raindrops. Frozen का मतलब जमा हुआ, right? It is a frozen raindrops. If falling rain converts into ice crystal, then it is called स्लिट. देखिए मैंने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है. इफ फॉलिंग रेन कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल, होता क्या है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे आप. देखिए क्या है, इफ फॉलिंग रेन कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल, होता ये है कि जैसे जब बारिश होती है ना, तो जैसे ये इवापोरेशन होकर क्लाउड बना हमारा, तो क्लाउड की जब कंडेंसेशन होती है तो ये क्लाउड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बड़ी स्ट्रांग होती है, राइट. तो ये जब बॉन्डिंग हमारी लूज होगी ना, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे सेग्रीगेट हो जाएगा ऐसे, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे तक गिरना शुरू कर देंगे, पहुंचना शुरू कर देंगे. लेकिन ये तो एटमॉस्फेयर की बात है. अब यहाँ पर ये अभी एटमॉस्फेयर में ही है, ग्राउंड तो यहाँ है हमारा, राइट. अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, ये जो ड्रॉपलेट्स है छोटी छोटी, ये ड्रॉपलेट्स आइस का फॉर्म ले लेगा. ऊपर में ही आइस का फॉर्म, अभी तो यहाँ पर वाटर है और ये है आइस. यूनेस्को ने आइस को भी H2O से ही रिप्रेजेंट किया है, वाटर को भी H2O से और आइस को भी H2O से ही रिप्रेजेंट किया है. तो ये है आइस हमारी, राइट. अब ये आइस जब हमारे तक गिरेगी, यू नो, दैट इज कॉल्ड स्लिट. लेकिन यही जो आइस है, इसकी साइज इसकी बजाय ये हो जाए, मीन्स इनकी साइज अगर 8 mm से ज्यादा हो जाए, तो ये आइस क्या कहलाएगा? स्लिट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हेल, जिसको हम कहते हैं ओले, राइट. ओले. तो ओले जो होते हैं उनकी साइज क्या होती है? 8 mm से ज्यादा होती है. तो मैं उसको जरा सा यहां पर स्टेटमेंट में आपका लिख देता हूं. इफ आइस क्रिस्टल, यहां देखिए, फॉलिंग इन कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल, देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड स्लिट. एक यहां पर वो छूट गया है, इट इज ए फ्रोजन रेन ड्रॉप्स इफ फॉलिंग रेन कन्वर्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल. इसको लिख दो एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड स्लिट, राइट. देन इट इज कॉल्ड स्लिट. अब यहां पर मैं लिखता हूं, इफ आइस क्रिस्टल converts into a lumps of size more than 8 mm, then it is called hail, right. मैं लिख देता हूं यहां पर ओले, then it is called hail. If ice crystal converts into a lumps of size more than 8 mm, then it is called hail. Hails are formed due to violent thunderstorms in which vertical currents are very strong, right. thunderstorms, violent thunderstorms, उसका मतलब क्या हो गया? देखिए जब सिंपल, एक बार आपने देखा होगा सिंपल बारिश होती है, राइट. एक बार आपने देखा होगा धूप भी है, सनी डेज है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है. एक बार आपने देखा होगा बिजली की करकराहट, लाइटनिंग, हैवी साउंड एंड देन रेन ड्रॉप्स कमिंग ऑन द अर्थ, राइट. सो दिस इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म्स. मीन्स स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड विथ लाइटनिंग, थंडर्स एंड साउंड्स, दैट इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म्स, करेक्ट. सो अब जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, थोड़ा थंडरस्टॉर्म ही यूज करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, ओके. रेन्स अब यूज नहीं करेंगे. सो दिस इज द वायलेंट थंडरस्टॉर्म इन विच वर्टिकल करंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो हाइड्रोलॉजी की जगह थोड़ा हाइड्रोमेट्रोलॉजी पे चलते हैं हम लोग. तो हाइड्रोमेट्रोलॉजी वो होती है जो हाइड्रोलॉजी, जैसे आपका हाइड्रोलॉजी क्या हो गया, पूरा स्टडी हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रोमेट्रोलॉजी वो हो गया, द पैरामीटर्स विच विल अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टॉर्म इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्रोलॉजी. तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन को अगर प्रेशर अफेक्ट कर रहा है, सो इवेपोरेशन इज द हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर, बट प्रेशर इज द हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल पैरामीटर, क्योंकि वो उसको अफेक्ट कर रहा है, राइट. अब यहां पर क्या है हमारा, hails are formed due to violent thunderstorm in which vertical currents are very strong. Vertical currents means as a movement, right. Flow of air in horizontal direction is called wind. ये हो गया wind, and this is the vertical
करेक्ट। तो यहां पर ये हेल्स का कंपाइल्ड डेफिनेशन हो गया आपका। चलिए, अब ये तो थे हमारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जब बारिश की बूंदें अपने तक आ चुकी है, हमारे कैथमेंट में आ चुकी है, तो क्या होगा इसमें। तो देखिए, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, हम चेक करेंगे कि जो बारिश हुई है उससे कितना परसेंट हमारा एरिया भीगा है और कितना परसेंट हमारा ड्राई रह गया है, राइट। सो इनको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस। नेक्स्ट टर्म आप लिखेंगे इंडेक्स ऑफ वेटनेस। राइट, ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मैं लिख रहा हूं, आदत हो गई है थोड़ी लिखने की, इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आईओडब्ल्यू, आईओडब्ल्यू जो होती है वो क्या होती है, रेनफॉल इन एनी ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ऑल ईयर्स। और एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालने के लिए मिनिमम कितने साल का डेटा चाहिए था हमको, 30 ईयर्स का, जो मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था, मीन्स एटलीस्ट 30 ईयर्स इंटू 100। ये हो गया हमारा आईओडब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आईओडब्ल्यू फॉर ईयर 2019 क्या हो जाएगा, पी ऑफ 2019 डिवाइड बाई पी ऑफ 1989, पी ऑफ 2019 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे आईओडब्ल्यू। अब अगर मान लीजिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस है हमारी 60%, इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज इक्वल टू 60%, मतलब 60% एरिया ही भीगी, तो कमी कितने की रहेगी हमारी, 40% की, क्योंकि हमें तो 100% चाहिए था। देन डिफिशियंसी ऑफ रेनेज then deficiency of rainage 40%, राइट। अब अगर मान लीजिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस 70% है, तो रेन की डिफिशियंसी कितनी हो गई हमारी, 30%, राइट। इनको हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, देखिए कैसे क्लासिफाई किया हमने कि इफ रेन डिफिशियंसी इज 30 to 45%, then it is called large deficiency। और अगर रेन डिफिशियंसी 45% to 60% है, तो हम इसे कहते हैं then it is called severe deficiency। और अगर रेन डिफिशियंसी ग्रेटर देन 60% है, तो हम इसे कहते हैं डिजास्ट्रस डिफिशियंसी। ये हमारे कोड में मेंशन किया गया है आईआरसी में, राइट। मैं आपको लास्ट में कोड बता दूंगा कौन कौन सा है, बट नॉट नेसेसरी टू रीड दैट कोड। इफ यू विल स्टडी के सुब्रमण्यम और आवर थ्योरी बुकलेट, देन यू विल गेट द प्रॉपर आइडिया, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी एनीथिंग, देन डायरेक्टली स्टडी द क्लास नोट्स, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, 30 to 45% पानी की कमी, इसको हम लार्ज बोलते हैं। जो हमारे पास रिजर्वायर है या फिर समथिंग अदर सोर्सेस हैं, वहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, इस डिफिशियंसी को हम मैनेज कर सकते हैं। 45 to 60% सीवियर डिफिशियंसी, इसको हम सीरियस डिफिशियंसी बोलते हैं, राइट। आपत्तिजनक है ये। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा कि जो रिजर्वायर है वहाँ से वाटर ले लो, कनाल वाटर ले लो, अंडरग्राउंड वाटर यूज कर लो, तो वहाँ से भी ये डिफिशियंसी थोड़ी बहुत मैनेज हो सकती है। लेकिन ये जो ग्रेटर देन 60% है, ये मैनेज करना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, दैट्स क्लासिफाइड एज डिजास्ट्रस डिफिशियंसी, राइट। तो चलिए, ये तो हमारी डिफिशियंसी की क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम इसी को क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ वेटनेस का ये टर्म तो हमारा समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहते हैं नेक्स्ट टर्म को, ड्राउट। ड्राउट हमारी क्या होती है, चलिए उस पर आते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्राउट। जिसको हम सूखा बोलते हैं, राइट। देखिए क्या होता है, इट इज ए क्लाइमेटिक एनोमली which is characterized by
insufficient supply of moisture over a long period of time. It is a climatic anomaly, means मौसम का असंतुलन anomaly, which is characterized by insufficient supply of moisture over a long period of time. Drought phenomenon is a hydrological extreme like flood. जैसे होता क्या है कि फ्लड में जो वाटर होती है हमारी, वो क्या होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है, सो दैट इज फ्लड. और ड्राउट में वाटर जो होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज ऑन मिनिमम लेवल, सो दैट इज कॉल्ड ड्राउट. दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंट द टर्म हियर मैक्स, यू नो व्हाट, हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम. एक में वाटर मैक्सिमम मिलेगी, एक में वाटर मिनिमम मिलेगी, राइट. सो काफ़ी ड्राउट प्रोन जोन है. कर्नाटका का तो सबसे ज़्यादा ड्राउट प्रोन जोन है आपका, राजस्थान का भी जोन है बहुत सारा ड्राउट प्रोन जोन, यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रहती है. तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक एनोमली विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक. ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए जैसे 2018 है, 2018 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मान लीजिए कि 400 सेंटीमीटर होगी, और 2019 में 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो ऐसा आप नहीं कह सकते. अभी सॉरी 100 मत रखिए आप, इसको चलिए 250 सेंटीमीटर रख लीजिए. अगर मान लीजिए ऐसी बारिश हुई, सो यू कांट से कि ये जोन हमारा ड्राउट प्रोन जोन हो गया. नहीं, ऐसा नहीं कहते. लंबे अंतराल से पानी की कमी आ रही है. जैसे मान लीजिए कि पहले 400 थी, अब 350 हो गई, फिर 300 हो गई, फिर 250 हो गई, 200 हो गई, फिर 190 हो गई, 100 हो गई, एंड सो ऑन 50-60 अब आ रहा. सॉरी. तो लंबे समय से जब अगर हमारी पानी की कमी होगी ना, तो हम उस एरिया को ड्राउट प्रोन जोन बोलेंगे. अब यहाँ पे क्या है, ड्राउट्स की जो क्लासिफिकेशन है, चलिए मैं क्लासिफिकेशन से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूँ. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ ड्राउट इज 20% to 40%, then such a region is called drought prone region. राइट. तो मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ड्राउट इज 20% to 40%, देन सच ए रीजन इज कॉल्ड ड्राउट प्रोन रीजन. अगर 20 से 40% प्रोबेबिलिटी है ड्राउट्स आने की, तो हम ड्राउट प्रोन एरिया उसको बोल देते हैं. तो इस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्वेश्चन तो ये आता है. तो देखिए, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड फ्लड्स पे पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फ्लड्स की प्रोबेबिलिटी आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं. उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से ड्राउट्स की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. क्यों? क्योंकि a+b² ऐसा नहीं कि सिर्फ अलजेब्रा में यूज करते हैं. क्यों? ट्रिगोनोमेट्री में यूज नहीं करते हैं. क्या यूनिवर्सल फॉर्मूला है. तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय रिकरेंस इंटरवल. उसी फॉर्मूला से सारा कैलकुलेट हो जाएगा आपका. करेक्ट. और भी इंपीरिकल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के, वी विल डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ फ्लड. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज ग्रेटर देन 40%, पी की वैल्यू अगर 40% से ज्यादा है, देन सच ए रीजन इज कॉल्ड chronologically drought prone region. चलिए मैं ठीक से लिखता हूँ थोड़ा सा. फर्स्ट बार लिख रहा हूँ, इज कॉल्ड chronologically drought prone region. ऐसे एरिया में हमेशा ही ड्राउट की समस्या होगी. राइट. मीन्स उस जोन को ड्राउट प्रोन जोन डिक्लेयर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है. करेक्ट. अब ड्राउट्स की क्लासिफिकेशन के लिए एक कमिटी डेवलप हुई थी 1976 में. तो हम लोग देखते हैं ड्राउट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है. तो यहाँ पर न्यू हेडिंग लिखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट.
लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर (1976). Right. First is meteorological drought. Meteorological drought. It is a situation where there is more than 25% decrease in precipitation. अगर precipitation जो है उसमें कमी 25% से ज़्यादा की है, जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर बारिश होती थी और अब जो बारिश हो रही है 75 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, then we are saying that's a drought or meteorological drought. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और if it is situation where there is more than 25% decrease in precipitation or precipitation is less than 75% of normal value. अब यहां पर क्या है, IMD ने इसको सब क्लासिफाई किया. IMD सब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउट. राइट, क्या है हमारा फर्स्ट, देखिए फर्स्ट, इफ रेन डिफिशियंसी इज ग्रेटर देन 25%, ऐसा लिख देता हूं, इफ रेन डिफिशियंसी इज ग्रेटर देन 25%, देन इट इज कॉल्ड ड्राउट. देन इट इज कॉल्ड ड्राउट. अब देखिए यहां पर क्या है, चलिए मैं थोड़ा आगे बताता हूं इसको. पानी की कमी अगर 25% से ज़्यादा होगी तो हम उसको सूखा बोलेंगे. अगर पानी की कमी 20% है तो हम उसको सूखा नहीं बोलेंगे, उस कमी को हम मैनेज कर सकते हैं. इफ रेन डिफिशियंसी इज 25% to 50%, then it is called moderate drought. और तीसरा है, if rain deficiency is greater than 50%, then it is called severe drought, right, और serious drought. तो ये तीन हमारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, IMD के सब क्लासिफिकेशन है. सॉरी. तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एवरेज रेनफॉल किसी कैचमेंट में 100 सेंटीमीटर होती थी और अब ये रेनफॉल 80 सेंटीमीटर हो रही है, राइट. सो दिस इज डिफिशियंसी ऑफ रेन कैरेक्टराइज्ड बाय 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज टेम्पररी डिफिशियंसी एंड वी कैन मैनेज इट, राइट. बट अगर ये रेन डिफिशियंसी 70 सेंटीमीटर है, रेन 70 सेंटीमीटर की हो रही है, तो ये डिफिशियंसी 30 सेंटीमीटर की है, मीन्स 25% से ज्यादा की डिफिशियंसी, देन वी कैन से इट्स अ ड्राउट, राइट. अब आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है, आप पूछ नहीं सकते अभी यहाँ पे. तो देखिए कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे कि सर आपने इसके पहले जो बताया था कि रेन डिफिशियंसी 30 to 45% है तो लार्ज डिफिशियंसी है, 45 to 60 है तो सीवियर डिफिशियंसी है, और ग्रेटर देन 60 है तो डिजास्टर्स डिफिशियंसी है. बट यहाँ पर तो आप कुछ और बता रहे हो. तो वो जो क्लासिफिकेशन थी वो रेंज की क्लासिफिकेशन थी, टेम्पररी क्लासिफिकेशन थी रेन डिफिशियंसी की, जो पानी की कमी टेम्पररी है. बट ड्राउट का डेफिनेशन आप देखो, इट इज ए climatic anomaly which is characterized by deficiency of rain over a long period of time. लंबे समय से ये कमी चलती आ रही है. तो वो रिच लोगों की क्लासिफिकेशन थी. जैसे मान लीजिए अभी जैसे देखिए अभी पूरा मार्केट हमारा डाउन हो गया है कोरोना की वजह से. मीन्स यू नो व्हाट कि ये जो डिफिशियंसी है ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिफिशियंसी है, टेम्परेरी डिफिशियंसी है, मैनेज हो जाएगी 2-3 महीनों में. लेकिन
जो लंबे समय से डिफिशियंसी हमारी चलती आ रही है, दैट इज कॉल्ड ड्राउट। तो अब हम ये ड्राउट का, ये पुअर क्लासिफिकेशन है, पुअर लोगों का क्लासिफिकेशन है, राइट। जो हमेशा कोरोना हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी इनकम 10,000 अभी भी इनकम 10,000, राइट, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा वाला डिफिशियंसी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सॉरी कि रेन डिफिशियंसी की। तो अब यहाँ पर ये तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट की क्लासिफिकेशन थी। दूसरी जो है हमारी वो है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। इससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, राइट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। सो जस्ट वी विल सी इट। इफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखिए इसको। इफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन, if the presence of water in streams, if the presence of water in streams, lakes and various underground sources is below average, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इज बिलो एवरेज, देन इट इज क्लासिफाइड एज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है हमारा, सो देन इट इज क्लासिफाइड, चलिए फुली लिखता हूं, आदत पड़ जाएगी नहीं तो। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। अब यहां पर बिलो एवरेज को मैं थोड़ा सा डिक्टेट करता हूं, 2 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है। ओके, नाउ हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट देखिए, बिलो एवरेज, इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा था। If the presence of water in streams, lakes and various underground sources is below average, then it is classified as hydrological drought. It may occur due to, ये points लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके, it may occur due to low precipitation, comma, poor management of water and due to increasing demand of water, right? It may occur due to low precipitation, poor management of water or due to increasing demand of water. इन तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट अलग अलग करेंगे, लो प्रेसिपिटेशन, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर और ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। तो ये चीजें है क्या एग्जैक्टली, देखिए। जैसे मान लीजिए ये रिवर बेसिन है हमारी, एंड दिस इज द लेवल ऑफ वाटर हियर राइट नाउ, दिस इज द फ्री सरफेस। सो एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, as per the definition, just see here, if the presence of water in the streams, lakes and various underground sources is below average। तो एग्जैक्टली क्या थी कि जो वाटर लेवल थी, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, ये स्पेशली जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, स्ट्रीम्स के लिए और लेक्स के लिए और कोई वेरियस अंडरग्राउंड सोर्सेस के लिए। तो इसमें जो वाटर की लेवल थी वो यहाँ हुआ करती थी, लेकिन राइट नाउ लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि वाटर की लेवल ये है इसमें, राइट। तो पानी का लेवल कमेगा तो क्या होगा, ये अगर GWT था, थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के डिस्कस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो फिर माइंड पूरा शार्प नहीं हो पाएगा। जैसे ये GWT है, ग्राउंड वाटर टेबल। आपने सुना होगा कि ग्राउंड वाटर टेबल की फ्लक्चुएशंस होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने बोरिंग करवाया, और बोरिंग आपने कितने पे कराया, मान लीजिए 100 फीट पे करवाया, और उसके बाद क्या हुआ, 10 साल 20 साल वो बोरिंग अच्छे से चला, आपको प्योर वाटर दिया, लेकिन उसमें क्या हो गया, सिल्ट आ गया। फिर अब क्या हो गया, जब सिल्ट, फिर लंबे समय के बाद देखा आपने कि उसमें पानी आना ही बंद हो गया, मतलब सिल्ट भर गया उसमें। अब बोरिंग और नीचे कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड वाटर टेबल हमारी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, क्योंकि जब रिवर में पानी होगा नहीं तो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हमारा कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये और नीचे चला जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये कंडीशंस आती कैसी हैं, आप इसको जरा सा ऑब्जर्व कीजिए, खुद से सोचिए। इफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन स्ट्रीम्स, लेक्स एंड वेरियस अंडरग्राउंड सोर्सेज इज बिलो एवरेज, देन इट इज क्लासिफाइड एज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। इट मे अकर, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट आपके लिए लिखा है, आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए इन तीनों पॉइंट्स को। इट मे अकर ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर और ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। देखिए, पानी की कमी तभी हो सकती है, आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस आपका कम तभी हो सकता है जब आप कमाना छोड़ दें, मीन्स काम करना आप छोड़ दें,
तो धीरे धीरे बैंक बैलेंस क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि कमा कम रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, मीन्स इनफ्लो कम है और एक्सपेंडिचर आपकी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको हो सकता है। और यहाँ पर देखिए आपका तीसरा कि आपकी जो इनकम है उसके करस्पॉन्डिंग आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही कुछ चीज़ें सामने आती है। क्या आती है, देखिए कि ये हमारा वाटर का लेवल है। तो पहला, वी ऑल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, यू नो, नेचुरल वाटर, मीन्स जो हमारी प्रेसिपिटेशन है उस पर ही हम डिपेंडेंट हैं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रिजल्ट मैं बता रहा हूं, 80 to 90% रिवर्स जो होती हैं हमारी, 80 to 90% रिवर्स, उसमें जो स्टोरेज होती हैं, और वो स्टोरेज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन की मॉनसून पीरियड में ही होती है। मीन्स 80 से 90% स्टोरेज उसकी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है मॉनसून सीजन में, एंड थ्रू आउट द ईयर वी ऑल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट। इसलिए कहा जाता है कि इस बारी बरसात कम हुई, इस रिवर का पानी कम हो रहा है, ये एंड सो ऑन। देयर आर यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज यू नो ऑलवेज कमिंग इन न्यूज़पेपर एंड सम थिंग्स। सो समय मिलेगा तो मैं जरा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, और समय मिलेगा मैं बिल्कुल देखूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है कि लो प्रेसिपिटेशन, तो हमारी रिवर जो थी और हमारी जो कैचमेंट थी वो हैबिचुअल थी 100 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन के लिए, मान लीजिए आप ऐसा, बट जो बारिश हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सेंटीमीटर की हो रही है। तो 40-40 की तो डिफिशियंसी हर साल आ रही है इसमें। तो लंबे समय के बाद ये डिफिशियंसी क्या होगी, हमारी बहुत कम हो जाएगी, यू नो, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो, सॉरी उल्टा बोला, डिफिशियंसी कम नहीं, डिफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो अब यहां पर क्या हो गया, लो प्रेसिपिटेशन। दूसरा, पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। इस टर्म को देखते हैं, जैसे मान लीजिए रिवर बेसिन है, इससे हम लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। हम लोग क्या करते हैं, वाटर की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करते हैं, राइट। वाटर की मैनेजमेंट हम लोग सही नहीं कर रहे हैं। अगर हम मैनेजमेंट सही करना शुरू कर दें वाटर की, तो हम 50 to 60% अपने कैचमेंट को सही कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट होगी कैसे, देखिए पहले पुअर मैनेजमेंट की बात कर लें हम लोग। आप देखिए कि जो मैक्सिमम जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, a lot of work which will require sand, और वो सैंड जो हम यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, इस रिवर बेसिन की सरफेस एरिया ये है, हम क्या करते हैं यहां से सैंड कटिंग करते हैं, राइट। इलीगल माइनिंग्स भी होती है, सैंड हम यहां से कटिंग करते हैं। तो रिवर की सरफेस एरिया ऐसे हो गई, सरफेस एरिया बढ़ी। अब आप ऐसा करो, 1 लीटर पानी इस ग्लास में रखो और 1 लीटर पानी इस बड़े से कंटेनर में रखो आप, राइट। दोनों को सेम टेम्परेचर पे अपने टेरेस पे छोड़ दो, तो सेम टाइम पे आप देखोगे इससे इवेपोरेशन कम हो रही है और इससे इवेपोरेशन ज्यादा हो रही है। मींस इससे अगर पानी 1 सेंटीमीटर निकली होगी तो इससे 5 सेंटीमीटर निकली होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई, तो सेम टाइम पे ज्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है। जैसे सपोज करो, दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये इस क्लासरूम का गेट है, ठीक है, और ये गेट 8 फीट बाई 4 फीट का गेट है, ये 8 बाई 4 का ये गेट है, राइट। अब यहां पर क्या है एग्जैक्टली कि हमने देखा कि आप 200 स्टूडेंट हो, हमने गेट की 8 फीट बाई 4 फीट, 8 फीट हाइट और 4 फीट विड्थ हमने रखी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां से एक बार में 3 बच्चे निकल पा रहे हो, हमने गेट को बढ़ा दिया, 3 गेट लगा दिए, एक बार में ज्यादा निकलोगे। तो यहां से एग्जैक्टली यही होता है कि सरफेस एरिया अगर हमारी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सेम थिंग्स इज हैपनिंग हियर कि अगर रिवर की सरफेस एरिया आप बढ़ाते हो तो इवेपोरेशन आपका ज्यादा होगा। एक तो पानी आ कम रहा था, ऊपर से तुमने जाने का परमिशन और ज्यादा दे दिया, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, यू नो, वाटर ज्यादा निकलेगा। सो दैट इज क्लासिफाइड एज पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। अब जैसे देखिए आप कि जो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो हमारा पर कैपिटा डिमांड है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है, यही है ना, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे है। लेकिन 135 लीटर पर कैपिटा पर डे में क्या काम चलता है बंदों का। तो हम क्या करते हैं इस डिमांड को, जैसे मान लीजिए हमने एक व्हीकल्स रखा, तो हम तो पता चलता है 10 लीटर व्हीकल पे खर्च कर दिए एक्स्ट्रा, 2 व्हीकल रखा 20 लीटर खर्च कर दिए हम। तो जब हम पर कैपिटा डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होता है, तो भी हमारा वो अफेक्टेड होता है, वाटर अफेक्टेड होता है। तो इसलिए हमने लिखा इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 5 बंदे हैं, तो 5 × 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये हमारा कंजम्पशन हुआ उस फैमिली के लिए। तो मान लीजिए कि ये हो गया वही 650 या 675 लीटर के आसपास हो गया। लेकिन ये फैमिली अगर मान लीजिए 1200 लीटर खर्च कर रही है, जस्ट 2 गुना खर्च कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज क्लासिफाइड एज इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, राइट। तो ये हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट थी। अब इससे हम निपटेंगे कैसे, तो निपटारा मींस इसका रिमेडी एक ही बार डिस्कस करूंगा मैं तीनों ड्राउट का। चलिए तीसरा आते हैं हम लोग,
एग्रीकल्चरल ड्राउट। थर्ड इज एग्रीकल्चरल ड्राउट। एग्रीकल्चरल ड्राउट देखिए क्या होती है। It is characterized by deficiency of moisture required for the growth of crops. It is characterized by deficiency of moisture required for the growth of crops. It is expressed by aridity index AI or Palmer index, that is PI, right? So it is characterized by deficiency of moisture required for the growth of क्रॉप्स। यहां पर हम लोग डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को भी अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि अगर क्रॉप मर चुका है, डेड है क्रॉप, तो फिर पानी तो चाहिए नहीं उसको, राइट। फिर काहे की डिफिशियंसी काहे की एफिशिएंसी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहां पे इसको एरिडिटी इंडेक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एरिडिटी इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो। मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, दोनों सेम प्लांट है, सेम सॉइल है, राइट। दिस इज प्लांट, मैंगो ट्री रख लो और इसको भी मैंगो ट्री रख लो, राइट। अभी मैंगो का सीजन ही है तो मैंगो ही चलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है यहां पर देखो कि सॉइल जो यहां पर मान लो सैंडी सॉइल है, C5 सॉइल है, मान लो C5 सॉइल, और ये भी C5 सॉइल है। इस सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट MC इनिशियल 10% है से, और इनकी मॉइस्चर कंटेंट इनिशियल भी 10% ही है से, राइट। अब यहां पर क्या है एग्जैक्टली कि ये जो प्लांट है हमारा मैंगो का, इसको ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए 25% मॉइस्चर कंटेंट चाहिए। सो यहां पर मैं लिखता हूं प्लांट रिक्वायर्स, दोनों प्लांट एग्जैक्टली ये दोनों प्लांट्स मैं यहां पर लिखता हूं, प्लांट रिक्वायर्स 25% मॉइस्चर कंटेंट फॉर इट्स ऑप्टिमम ग्रोथ, फॉर इट्स ऑप्टिमम ग्रोथ, राइट। तो अभी हमने क्या किया कि यहां से हमने वाटर सप्लाई किया, यहां से हमने वाटर सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन इनपुट। अब जो मॉइस्चर कंटेंट हो गई इसकी फाइनल, ये हो गई 25%, राइट। मतलब जितनी इसको चाहिए थी उतना हमने दे दिया, तो अब तो इसका फर्ज बनता है कि ये ऑप्टिमम ग्रोथ करेगा हमारा। जैसे मान लो कि तुमने मुझे बोला कि सर इतना अगर आपने पढ़ा दिया ना तो मैं ऑप्टिमम बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, और सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया तो पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, तो मैंने कहा चलो पूरा पढ़ा देते हैं। तो अब तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। तो देखो एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है कि इस प्लांट को जितनी मॉइस्चर चाहिए थी सॉइल में उतनी मॉइस्चर हमने दी, तो अब ये प्लांट्स उसको खींचेगा और ये पानी हमारा बाहर जाएगा प्लांट्स के जरिए और सॉइल के जरिए। सो दिस इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन। लेकिन जितनी इसकी क्षमता थी पानी खींचने की, उतनी क्षमता के अकॉर्डिंग ये पानी खींच लिया, तो उस क्षमता को हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल वर्ड से, तो दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, राइट। लेकिन यहां पर क्या है कि इसको चाहिए थे 25%, हमने कोई वाटर नहीं दिया इसको, नो इरिगेशन इनपुट, नो इरिगेशन इनपुट हियर, राइट। तो अब तो ये ऑप्टिमम ग्रोथ कर नहीं पाएगा, इसको तो पानी 10 लीटर चाहिए थी ग्रोथ करने के लिए, आपने 1 लीटर दिया, तो 1 लीटर क्या ये रूठेगा थोड़ी कि 1 लीटर पूरा दोगे तभी ग्रोथ करेंगे।
1 लीटर में जितना ये ग्रोथ कर सकता था उतना करेगा, फिर इसके ग्रोथ, इस प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा, धीरे धीरे प्लांट डेड हो जाएगा हमारा, राइट। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि ये जो ग्रोथ होगी हमारी एज पर द एक्चुअल कंडीशंस, तो जो वाटर निकलेगी वो क्या कहलाएगी हमारी, इवेपोट्रांसपिरेशन तो कहलाएगी, लेकिन एक्चुअल कहलाएगी। मीन्स जितनी वाटर थी उसके करस्पॉन्डिंग ये वाटर हमारा निकल चुका। मीन्स जब आप मेरे से पढ़ रहे थे, नहीं पढ़े थे तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो आपकी एक्चुअल इफिशियंसी थी। जब आपने पढ़ लिया आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और आप हर कंडीशन में 10 से ज्यादा कभी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 10 है एग्जाम में, तो 10 से ज्यादा कहां से करोगे। तो पोटेंशियल कितनी होगी आपकी, 10 होगी, राइट। तो वही चीजें यहां पर है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि AET की वैल्यू PET से ज्यादा होगी या कम होगी। AET की वैल्यू PET से ज्यादा होगी या कम होगी, राइट। जैसे आप घर पे जब पढ़ोगे तो जब मेरे लेक्चर को देखोगे तो जैसे मैं बोलता हूं ना इस तरीके से, तो आप अपने रूम में बैठ के आप आंसरिंग खुद से करोगे। जैसे मैंने पूछा AET की वैल्यू PET से ज्यादा होगी या कम होगी, तो घर में ही बैठ के आप समझ लो कि मैं वहीं पे हूं, आप बोलोगे AET की वैल्यू PET से कम होगी, राइट। या फिर आपको उल्टा लग रहा है तो उल्टा बोलोगे, और फिर जब मैं देखूंगा बताऊंगा तो अपने अंदर की कमी को आप देखने की कोशिश करोगे कि क्या कमी रह गई कि आपने गलत आंसर कर दिया। तो यहां से मैक्सिमम वाटर निकल सकता है, यहां से मैक्सिमम वाटर नहीं निकल सकता है। सो AET इज ऑलवेज लेस देन PET, राइट। सो दैट वी कैन से AET by PET इज लेस देन 1, ठीक है। अब जैसे देखिए आप यहां पर क्या है कि एरिडिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है एरिडिटी इंडेक्स, ये किस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने वर्ड यूज किया। जैसे हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है, हम खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स यू नो व्हाट। तो अब एग्जैक्टली क्या है यहां पर एरिडिटी इंडेक्स, ये डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या डिफिशियंसी की वैल्यू 100% से ज्यादा हो सकती है क्या, कभी भी नहीं हो सकती। तो यहां पर ये डिफिशियंसी क्या होगी, 1 माइनस समथिंग इंटू 100%, मतलब 100% से तो कमी होगी ना। अगर सॉइल में जो मॉइस्चर है वो 100% है जितना चाहिए प्लांट्स को, तो काहे की डिफिशियंसी, कोई डिफिशियंसी नहीं है। जैसे यूपी में शुगर केन लगाना है और यूपी के कैचमेंट में शुगर केन के लिए सफिशिएंट वाटर है, तो काहे की डिफिशियंसी, कोई डिफिशियंसी नहीं है। यूपी में पल्स लगाना है, पल्सेस के लिए डिफिशियंसी है, पल्सेस के लिए जितनी मॉइस्चर चाहिए यूपी के कैचमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो गया, डिफिशियंसी है यहाँ पे हमारी। तो 1 माइनस क्या हो गई डिफिशियंसी हमारी, AET by PET, राइट। इस तरीके से इस फॉर्मूला को आप लिखेंगे। ये कम से कम 5 to 6 टाइम्स इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव्स में आए हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, PET माइनस AET by PET इंटू 100, ये आता है एग्जाम में। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, जल्दीबाजी में रटते हैं और यहाँ पर AET लिख देते हैं। नहीं, अगर तुम यहाँ पर AET लिखोगे यार, इसको अगर तुम PET by AET करते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%, 1 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये प्लांट्स ही पानी दे रहा है किसको, सॉइल को। होता है क्या कभी भी ऐसा, तो ऐसी सोच ही गंदी सोच है। सो दैट इज AET by PET, राइट। चलिए, सो एरिडिटी इंडेक्स इज ये। तो इस तरीके का क्वेश्चन ESE में आता है और ये काफी बार आ चुका है, मोर देन 5 टाइम्स, राइट। अब यहां पर देखिए आप, मैंने लिखा था AET इज लेस देन PET, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी भी, क्या आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए, क्या AET और PET बराबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आपको मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जब आप मुझसे नहीं पढ़ते थे तो भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आउट ऑफ 10 सॉल्व करते थे, पढ़ लिया तो भी 10 आउट ऑफ 10 सॉल्व आप कर रहे हैं। मैं जो आपका एक्चुअल था वही आपका पोटेंशियल है, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई प्लांट्स लगाना है और इस प्लांट्स को ऑटोमेटिकली इसको 25% मॉइस्चर चाहिए और सॉइल में 25 है ही, तो जो एक्चुअल है वही पोटेंशियल है, तो ये दोनों बराबर हो सकती है, राइट। सो AET by PET इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी AET by PET इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये रेशियो 0 के बराबर कभी हो सकती है क्या, AET by PET की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या, ये सोचिए, अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए। तो देखो AET, अगर मान लो किसी प्लांट्स को, मान लो रोज का एक प्लांट लिया या सनफ्लावर का एक प्लांट लिया, उसको तुम इस सॉइल में लगा दिया, तुमने लगा दिया, राइट। इस सॉइल में मॉइस्चर 0 है अभी, तो क्या कुछ पानी खींच पाएगा सॉइल से? सॉइल बिल्कुल ड्राई है, सैंड है, राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, तो क्या यहाँ से ये पानी खींच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो एक्चुअली इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आफ्टर सम टाइम प्लांट हमारा डेड कर जाएगा, सो ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक
लाई करती है। 0 इज लेस एंड इक्वल टू AET बाई PET इज लेस एंड इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आया गेट में। सो जस्ट यू कैन सी दिस इज जस्ट यू, इफ यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला तो आपका ES में काम हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद नहीं रखोगे तो गेट का काम आपका नहीं होगा। सो गेट आस्क कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड जनरली ESE आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। चलिए तो इसको जरा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका रेमेडी हो सकता है तीनों ड्राउट्स का। देखिए मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं इसको। ड्राउट, कौन कौन से ड्राउट थे हमारे? फर्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, एंड सेकेंड इज hydrological drought, and third is agricultural drought। ठीक है, तो यहां पर इनका इंपैक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या इंपैक्ट करेगा, और यहां पर रिमेडी लिखते हैं कि क्या इनकी रिमेडी होगी। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, आप अपने दिमाग पे 1 सेकंड के लिए जोर दीजिए जरा सा, 1-2 सेकंड के लिए। क्या है? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट में प्रेसिपिटेशन कम हो रही थी हमारी, मीन्स हमें चाहिए था 100 सेंटीमीटर का वाटर, और वाटर आया कितना? 70 सेंटीमीटर का। लेकिन इवेपोरेशन तो अपने अकॉर्डिंग ही होगी। क्या पानी कम आया तो रिवर का सरफेस एरिया ये था, सरफेस एरिया ये हो गया क्या? वैसा नहीं है। तो इवेपोरेट तो उतने के करस्पॉन्डिंग ही होगी, मीन्स इनफ्लो इज लेस बट आउटफ्लो इज सेम। अगेन इनफ्लो इज लेस, आउटफ्लो इज सेम। सो क्या हो रहा है? वाटर हमारा ज्यादा बाहर जा रहा है। सो वाटर साइकिल इज इम्बैलेंस, वाटर साइकिल इम्बैलेंस। चलिए अब रिमेडी क्या होगी इसकी? पहला कि पानी आया कम लौटा ज्यादा, राइट। तो जब घर में पानी कम रहता है तो क्या करते हो? पानी को सेव करते हो एक तरीके से, लेकिन यहां पर पानी आया कम और लौट रहा है क्या हमारा? ज्यादा। तो हम लौटने की रफ्तार को थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब सेव करते हैं, खर्च कम कर देते हैं। सो दैट इज कंट्रोल ऑन इवेपोरेशन। दूसरा क्या करेंगे हम कि पानी कम आ रहा है, आर्टिफिशियल रेन का नाम सुना होगा आपने, हम करेंगे क्लाउड सीडिंग, राइट। क्लाउड सीडिंग प्रेसिपिटेशन हमको देगी वहां से। चलिए दूसरा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, इसमें क्या है कि रिवर बेसिन में पानी कम हो गई है, एंड वी ऑल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, यू नो, रिवर वाटर। रिवर में पानी आएगी तभी तो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा और हम लोग उसको यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? रिवर में जब पानी कम हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन इन वाटर डिमांड। पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या होगा? वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी आ रहा है उसको बचा के आप रखिए, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। एंड नाउ हियर एग्रीकल्चरल ड्राउट, पानी कम दोगे पौधों को तो क्रॉप की इल्ड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, रिडक्शन इन क्रॉप इल्ड। पॉसिबल मॉडिफिकेशंस क्या होगी इसकी? वाटर हार्वेस्टिंग और चेंज ऑफ लैंड यूज। मतलब मान लीजिए कि पानी कम हुई तो यहां पर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट 10% थी, और 10% के लिए हमारा पोटैटो बहुत सुटेबल था, तो हमने पोटैटो लगा दिया। पहले हम शुगर केन लगा रहे थे, अभी हमने पोटैटो लगा दिया, मीन्स लैंड के यूज को हमने चेंज कर दिया। तो इनको इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव्स पर्पस, राइट। चलिए अब हम लोग जरा सा देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वाटर हार्वेस्टिंग जरा डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो नॉन टेक्निकल डेफिनेशन सिंपल ये है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड कंजर्विंग वाटर फॉर बेनिफिशियल यूसेस, राइट। ये आपका डेफिनेशन है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हाइड्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर हार्वेस्टिंग,
right? It is defined as process of collecting and concentrating runoff water from a runoff area to a run-on area where the collected water is either directly applied to the cropping area or stored in the soil profile for immediate use by the crop, right? So it is defined as the process of collecting and concentrating runoff water from a runoff area to a run-on area where the collected water is either directly applied to the cropping area or stored in the soil profile for immediate use by the crop. जैसे ये मान लीजिए, so यहाँ से रन ऑफ वाटर हमारी बाहर निकल रही है, so this is रन ऑफ एरिया इस चैनल के जरिए, और यहाँ पर ये हमने क्रॉप लगाया है इस तरीके से, so इस क्रॉप, और यहाँ भी क्रॉप लगी पड़ी है हमारी, दिस इज क्रॉपिंग एरिया, राइट? सो दिस इज जिसको आप यूज कर रहे हो दैट इज रन ऑन एरिया, दिस इज ऑल्सो रन ऑन एरिया, राइट? तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, इस वाटर को आप स्टोर करके रख लो, ये वाटर तो इधर जा रही थी उसको इधर स्टोर करके रख लो, और जब इनको जरूरत पड़ेगी आप इनको सर्व कर दो, राइट? तो वही लिखा है मैंने, वेयर द कलेक्टेड वाटर is either directly applied to the cropping area or stored in the soil profile for immediate use by the crop. इस soil profile में स्टोर करके रखा, जब जरूरत पड़ेगी दे देंगे। और डायरेक्टली कैसे करेंगे, अभी इस प्लांट को जरूरत है, ये पानी हमारा वेस्ट हो रहा है इसलिए इसको इधर दे दें। So where the collected water is either directly applied to the cropping area. This is directly applied to the cropping area and this is stored in the soil profile for immediate use by the crop. For immediate use by the crop. When these plants need water, then we will serve water from this area, right? So this is the run-on area, and now here this is the run-off area. And this is also run-on area where we are using this area for growing the crop purpose. So this water will enter in this run-on area so that purpose will be solved. So now it is defined as the process of collecting and concentrating runoff water from a runoff area. This is the runoff area where the collected water is either directly applied to the cropping area, and stored in the soil profile, right? This is the soil profile, stored in the soil profile for immediate use by the crop. Means जब इस क्रॉप को पानी की जरूरत पड़ेगी, we will serve water from here, right? So this is the definition of water harvesting. अब जो water harvesting जनरली होती है हमारी, वो दो तरीके की होती है, देखिए वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, फॉर इंटरव्यू पर्पस और फॉर ESC प्री। तो यहाँ पर क्या है वाटर हार्वेस्टिंग की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, first is rain water harvesting, and second is flood water harvesting, right? Rain water harvesting, rooftop water harvesting, और दूसरा हार्वेस्टिंग ऑन ए स्मॉल ग्राउंड एरिया सरफेस। फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग दो तरीके के होंगे, विथ स्टोरेज एंड विदाउट स्टोरेज, राइट? तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये मैं आपको पीपीटी में भी फिगर दिखा दूंगा, यहाँ पर वाटर प्रूफिंग करके इस बिल्डिंग पे, जैसे ये मान लीजिए बिल्डिंग है मल्टी स्टोरेज, राइट? वाटर हार्वेस्ट, यहाँ पर क्या किया,
जो रेन ड्रॉप्स है इसको यहाँ पर इकट्ठा किया, इसको हमने रिजर्वायर में भेजा और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम में भेज दिया। दैट इज कॉल्ड रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। हार्वेस्टिंग ऑन ए स्मॉल ग्राउंड एरिया सरफेस, जब बारिश हो रही है तो उस पानी को कहीं किसी नहर में, पोखर में क्या करो, स्टोर करके उसको रख दो। जब जरूरत पड़े तालाब में उसको स्टोर करके रख दो या कहीं रख दो, जब जरूरत पड़े उस वाटर को यूज कर लो, राइट। फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग विथ जो वाटर जो हमारी फ्लड से आई है उस वाटर का अगर कुछ यूटिलाइजेशन है आपका उस एरिया में, जैसे मान लीजिए ये फ्लडेड वाटर है और ये जा रहा है रिट्राइवल ऑफ फ्लड्स है, यहाँ जरूरत है तो यहाँ यूज कर लो। इसको जरूरत है अगर प्लांट्स को, इफी प्लांट्स को लंबे समय के बाद जरूरत है, चेक डैम्स बना के इसको स्टोर करके रखो, जब जरूरत पड़ेगी इसको सर्व कर देना, राइट। सो विथ स्टोरेज एंड विदाउट स्टोरेज। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर कंपाइल करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल।